So, hello everyone, Assalamu alaikum and good evening. Just let me know that I'm audible. Thank you so much. So, hello everyone, Assalamu alaikum and good evening. This is Muhammad Daniel Kamal. I am the Secretary STGs at the Burak Association और by profession मैं एक environmental scientist हूँ और आज की जो सेशन है for the international climate advocacy we will be having it on climate dynamics across the world कि different world regions के अंदर कौन कौन सी dynamics हो रही हैं either in terms of governance or in terms of impacts. And for today's session, without wasting any more time, I would like to welcome Mr. Talat Tufail Bhatti. He is working as an assistant research officer in terms of climate change domain in the Strengthening Regional Climate Resilience Program at the Institute of Regional Studies in Islamabad. And in short, he's an expert in climate governance and environmental policy. Thank you so much, Satala. And let's welcome Satala. Over to you. Well, thank you so much. I'd be happy to hear my thoughts with all of you. And जब भी मैं जाता हूँ देखता हूँ, the youth is getting engaged into this sector, and this is very important because the shift which we have right now is actually going to stay here for next 40 to 50 years. If we work hard, if we work smooth and in the right direction, then maybe we can achieve what we want to achieve in the longer run. So, with this, thank you so much. My name is Talha. I'm an environmentalist. I'm working for the Strengthening Regional Climate Resilience program. And this program is actually look after the China, Afghanistan, Iran. From the other side, it's Bangladesh, Nepal, uh, India, Sri Lanka, and the ocean side. So what I do, I look for the global trends and find the regional pathways into okay, how we can relate those regional global trends to the region. And in this regard, I find those areas where commonalities could be found between Afghanistan, Pakistan, and India, and in those areas which were difficult in the talk, like the Indus Water Treaty and how we can ensure this treaty work in the longer run. That's my area of interest right now. I'm working on it, and apart from it, I'll be following this issue of climate change from the past uh, 10 years, and I collected some of the evidence which were very real and very prominent, and uh, they were enough to convince me that the things are getting out of hands now. अब हम किसी एक क्राइसिस में नहीं है, अब हम पोली क्राइसिस की कंडीशन में आ चुके हैं. Like every year we have new intensity of rainfall, every year we have new intensity of heat wave, and now the smoke. I mean, the unofficial numbers which I have for this air quality index in Lahore and Multan was beyond. It's more than 2,500 to 3,000. I mean, this is not even hazardous anymore. It's lethal now. So these are the conditions which we are going through, and just to give you an overview, because I feel like the recent COP, आप सबने उसे follow किया होगा, and all of you would understand कि what kind of conditions or what kind of seriousness is present in those areas. And the last Friday we have that document which was given to the developing world just to analyze it. अब अगर आप ड्राफ्ट को देखें तो उसकी टर्मिनोलॉजी होती है, उसके permeables होते हैं, उसके आगे लेंस होती हैं. तो उसको पढ़ने के लिए काफ़ी आपको टाइम चाहिए होता है, एंड यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक टू द पॉइंट कि आप किस चीज़ पे आगे उसको डील कर रहे हैं. इन दैट रिगार्ड आई कैन से टू यू कि जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं है. Because we say we are the vulnerable country, but there are 100 more vulnerable countries which are present. Fundamentally, अगर historically देखें तो in the last 400,000 years, we have changed a lot of things which were present. Like जब हम इस चीज़ को शुरू में देखते हैं तो it's more like in the last 400,000 years the things were happily different in that regard. My apologies for this. I'm not particularly at home, so there is a
humans have a tendency in which they move along. First, we tend to we are curious enough to find a reason to spend our time on, and there's a problem always. We're curious to solve something, और उस क्यूरियोसिटी में जब हम उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन वी ट्राई टू डेवलप दोस फ्रेमवर्क्स व्हिच कैन सॉल्व दैट. Once we have the framework, we tend to optimize it. जब ऑप्टिमाइजेशन पे हम पहुंचते हैं, once the process is clear, you're putting your inputs and you're getting the outcomes you want, then we tend to expand it. That's exactly happened in the last 180 years. Because within this time, we tend to believe in hydrocarbons that gave us the opportunity to expand ourselves into a manner where we are today. Once there was a time कि जब एक बड़ी सी दुनिया पे छोटे से इंसान थे, बट अब ज़्यादा सारे इंसान एक छोटी सी दुनिया पे हैं. And historically we don't find any evidence कि 9 billion लोग या 8 billion people are living peacefully on a planet Earth. We don't have any evidence into that. Not even us, कोई भी और बाकी species को भी देखें. Still, if someone grows out of their line, that makes a problem into the system. And that exactly what happened. And now we are at the point जहाँ पे हमारे जो tipping points हैं वो बहुत active हो चुके हैं. Now tipping point is a point जो कि अर्थ सिस्टम के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से irreversible changes शुरू हो जाते हैं. Some of them are crossed, like for us at the regional level, और अपर इंडस बेसिन जो गिलगित बल्तिस्तान है, दैट इज द मेन एरिया जो इस चीज के अंदर आया हुआ है. द अपर इंडस बेसिन इज कोलैप्सिंग एज वी आर स्पीकिंग राइट नाउ, बिकॉज उसका जो टेम्परेचर है, विद इन दिस समर वी हैव सीन द ग्लेशियर इज एक्चुअली उसके पत्थर जो है वो नीचे आ रहे थे, एंड द ग्लेशियर इज एक्चुअली रिट्रीटिंग बैक मोस्ट ऑफ इट. और इसी वजह से जो भी मानसून की प्रेसिपिटेशन की चेंजेस या अदर चेंजेस जो हमें नज़र आ रही हैं. द अदर्स आर अमेजोन फॉरेस्ट, जिसके अंदर अब इस साल हमने ये देखा है कि वहाँ पे there's frequent droughts over there. The system was microclimate उसका इतना stable था. We call that the lungs of the planet Earth. वो अब stable नहीं रहे हैं. Similarly, like the green ice sheet, Greenland की जो ice sheet है, it is actually melting rapidly at the rapid scale. Every day there is a collapse over there, even for the Antarctica ice sheets. And all of these systems somehow connected into a manner where they work together for the planetary system. So imagine planet as a cell और उसके अंदर बाकी ये particles हैं जो उसको आपस में connected रख रहे हैं. So east is connected to west, north is connected to south. So everything is works in that manner on a planetary scale. And when the last health check happened, we came to know that due to current conditions, जो अभी हमारी conditions are like WMO recently quoted, we have crossed the threshold of 1.3 degree. On a yearly basis, we have crossed 1.5. This year was the 1.5 was actually crossed. Now this is the world which looks like at 1.5, and this is just a start. So when we get the health check of this planet Earth, we came to know that 6 out of 9 planetary boundaries are not working functionally, and it's not even it's not diluted to ये सिर्फ climate change नहीं है. There are 7 other departments which are working in that directions. There's 6 other, sorry. There's 5 other dimensions on which we have contributed into this. इसके अंदर जो हमारे novel air pollutants हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. And why I'm saying this, because if you look at back at the age ना, अगर हम ice cores के data से उस चीज़ को और भी देखा है, evidence को click किया, and I came to know that the carbon dioxide was never present at this level ever in the history of this planet. 417 ppm आज तक नहीं था. So that is actually the alarm which is actually blowing off into the system. And apart from it, the sea, जो आपके समुंदर हैं, जितने भी हैं planet के, if water has this remarkable ability to stay cold when अगर आप चूल्हे के ऊपर स्टोव के ऊपर पानी रखें, it doesn't get boiled eventually at the start. But once it's warm, it remains warm if you even turn off the stove. And that is the point where we are heading. Now the boiling is actually getting started in the oceans. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुके हैं. There are marine heat waves which are present, और उसकी वजह से जो coral bleaching है, it's very common in the region.
अभी हम तकरीबन चौथी से पांचवीं mass extinction से क्रॉस हुए हैं. So that is also alarm. So with by saying this, there are multiple tipping points. Tipping points, irreversible changes. हैं. The upper Indus Basin is melting. We cannot save it now. It's going to melt around 30% to in a case कि अगर हम in the longer run अपनी सारी चीजें उसी हिसाब से करें जैसे हमने प्लान की हुई है इंडिसेस को और ambitious करें and we move into a direction जहाँ पे maybe we can save it. Not we don't lose it beyond 30%. But if we go as business as usual, it can go beyond than 30%. It can go around 70%. So that 70% is very alarming for this reason. Now, I have told you what is the change in the climate. These are the changes which are very visual in the planetary scale. The impact factor, if you look at in the last year, we have around 399 disasters, and this year's the number is going to big. The climate bill, according to EMDAT, we have around $237 billion. Now, this is a big number. This is a very big number, and this is $237 billion. And this year at the COP, we have seen the hypocrisy from the G7, which they actually mentioned. They put it around $3 billion uh, till 2035. So just to make it clear, this is not going to happen in the next year. ये पैसे 2035 तक उन्होंने करने हैं. This they only they placed it. They didn't add any value into this. So that is the basic hypocrisy which D7 is actually playing. Moving further, not only this, the disasters are going getting more intense and frequent, but the heat waves, specifically heat waves, are at alarming rate. And because of those heat waves, we have seen multiple forest fires, and this forest fire is going to increase in the coming years. Like the number, the heat waves which we have for the region, the paper published around it could increase around 30 times more, 20 to 30 times more. That is humongous for our region because our forest cover is around 3 to 5%. And if we don't have forest, we are going to we don't have that buffer capacity to sustain it. But around the world, it is getting out of hand now. And because of that, those forest fires, जो सिस्टम के अंदर जो हीट ऐड हो जाती है दैट इज अगेन ह्यूमंगस इन देयर ओन पर्सनल रिकॉर्ड बिकॉज द लास्ट ईयर बोरल फॉरेस्ट जो कनाडा के अंदर फॉरेस्ट फायर में जला था और इट एडेड अराउंड 2 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इनटू द सिस्टम लास्ट ईयर द अकॉर्डिंग टू EM एनवायरमेंटल UN का जो एनवायरमेंट प्रोग्राम है उनकी फ्लैगशिप रिपोर्ट आती है द एमिशन गैप रिपोर्ट. They quoted around 57 gigatons of CO2. And now, this was the highest ever recorded emissions. And we are talking about climate change to top of our lungs, but still, this is the highest emission ever recorded in the history. So these are the very realistic impacts, and the most certain impacts is that the last 20 months, हर महीना पिछले महीने से हर महीना अगले महीने से इनके गर्म महीने आ रहे हैं गर्म चीजें आ रही हैं अकॉर्डिंग टू जिम्स की जो 7th असेसमेंट साइकिल जो रिपोर्ट हमें IPCC की मिलती है उसका जो प्रेसिडेंट है वो कह रहा है कि 5 से 6 5 डिग्री आर एडेड इनटू द सिस्टम ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. These 5 degree means कि अगर आपका नॉर्मल टेम्परेचर 21 डिग्री है तो आपको 25 मिलेगा feels like 25. So that feels like 25 is the problem by us by the climate change. That is actually the climate change. That the originality of the climate patterns are changed. The behavior of that pattern is actually changed. So last 20 months we have seen it. अब हम 1.5 का threshold भी cross कर चुके हैं. So these are the real conditions which we have right now. But most importantly, if we talk about the स्कॉप प्रोसेस में अब बहुत सारी तब्दीली करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज वी हैव दोज फ्रेमवर्क्स वी डोंट नीड न्यू प्लेजेस we don't need new commitments. All we need is to implement what we already have committed, and that is the problem which is actually coming from the cops right now. There are multiple authors around the world which are saying now we have to change the COP process in a manner जहाँ पे implementation के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा सके, legal bounties लगाई जा सकें जो लोग commit करते हैं, जो मुल्क जितना commit करते हैं वो उतना ना कर सकें. Like our NDC, which we have submitted in 2020, when the next cycle is all about this next whole year, and the COP 30 is going to be about NDCs.
Our NDC specifically, which we have submitted at back in 2021, quoted this that we need to convert our resources, our national grid to more than we need to add 60% of renewable energy. Just to add this number to you, we actually reached to 52%. हमारा 52% renewable energy mix में renewable national grid के अंदर आ चुका है. But and we can reach, the plans are on a place there where we can reach the 60%. But does this G7 actually put up their all need जो उनको उन्होंने commit करना चाहिए था? UK just committed around 81% reduction in their emissions by 2030 or by 2040. Now, this is actually a commitment which is actually valuable. But again, on the other side, Trump actually won the election and categorically he said कि we I'm going to leave this Paris Agreement. Same as the Argentinian president did that at this call. Now, these right-wing leaders have this capacity; they can leave the Paris Agreement because it's a voluntary one. और मुझे एक और बहुत बड़ा ग्लिच है इसके अंदर जो महसूस होता है जो यूनिफ ट्रिपल सी की साइड है बिकॉज यूनिफ ट्रिपल सी इज प्योरली अ मार्केट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर मार्केट सेंट्रिक अप्रोच को रखा जाता है और उसी वजह से जो प्रोसेस सी एम ए के और सी एम पी के ना सी एम ए इज फॉर द क्योटो प्रोटोकॉल इन क्योटो प्रोटोकॉल द पॉइंट वाज टू रिड्यूस एमिशन नाउ राइट नाउ एंड इट वाज टॉप डाउन अप्रोच बड़े मीटर्स को कम करना था. Now, what they did in the Paris Agreement, they not only credited the system for with 80 years, उन्होंने 80 साल का हमसे credit ले लिया, but also apart from it, they actually turn it into a bottom-up approach. Now we have to submit those NCDs and NDCs, which have to be ambitious. We have to cut ourselves into a manner जहाँ पे वो चीज़ हो सके. But again, that whole debate depends upon where we are heading. हम जितना मर्जी अपना एम्बिशन बढ़ा लें अगर वो अपनी मिशन कम नहीं करेंगे we cannot sustain this fight because nature is going to be brutal with us. And sometimes they quote into the newspaper that the climate change is the Asian problems because Asians cannot handle it. We can. अब लास्ट ईयर या इस साल भी हमारे पास जो वहाँ पे जो इस पर हेलेनी और जो स्टॉर्म्स आए हैं they eventually cost them around more than 100 billion and they can sustain those 100 billion क्योंकि उनकी मार्केट बड़ी स्ट्रांग है. हमें अगर 100 बिलियन का नुकसान हो जाता है तो हमारी मार्केट इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम उसे सस्टेन कर सकें और यही हालत बहुत सारे वर्नेबल कंट्रीज के हैं बट दे डू नॉट फाइंड द रीजन टू फाइनेंस इट and they will never find it. Even at this COP, China was willing to put more money into the climate finance. चाइना ने बीआरआई के थ्रू पाकिस्तान या बाकी मुल्कों में तकरीबन 32 to 38 बिलियन डॉलर्स ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हैं. एनुअली वो $4 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड दे वर विलिंग टू इंक्रीज दिस मनी टू $500 बिलियन अगर बाकी भी उनका साथ दें. So that was the main silver line जिसके ऊपर वो मूव करना चाह रहे थे. And again, what happened that the G7 didn't show us that promises because of the Trump and the main climate negotiator which were present for the US in the COP29. They said that the political cycle is for 5 years and it's not going to judge the faith for humanity in the longer run. But because of Trump, 4 billion could be added in the system. And according to the last planetary budget, we have around 400 to 200 to $400 billion gigatons of CO2 remain. And if you look at do the math, के last year जो है, वो 57 gigatons were emitted. How many years is going to take to emit all of it? And that is when the real problems jump in. And then when the real problems jump in, they are going to take to actions which are going to be unilateral. And in that regard, there is a technology, maybe some of you know, solar radiation management. Now, solar radiation management is a technology in which they are trying to put some aerosols into the stratosphere, into the outer stratosphere, which can reflect back the sunlight. So eventually what the problem lies is कि हम सूरज की रोशनी तो पीछे भेज देंगे पर सिस्टम में हीट तो ऐड होती जाएगी. According to Al Gore, which actually shared this number, that every day we are adding 7,500 tons of 5 lakh 50,000 7 lakh 50,000 अगर एटॉमिक बॉम्ब्स जो हमने हिरोशिमा नागासाकी में जो ब्लास्ट किए थे उसकी जो हीट है उतनी हीट हम डेली बेसिस पे सिस्टम में ऐड कर रहे हैं. And that is huge
in its own regard. So these are the problems which we are facing right now. And because of these problems, we are unable to do any more uh, sightness into the system that how we can even move towards it. Now, Pakistan is developing their indices for the next round, and those indices we are moving towards the subsectoral level at the provincial level too. So those provincial levels are very influential for the upcoming generations because अब हम हर इंडस्ट्री का स्पेसिफिक अपनी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं पहले तो डाटा है ही नहीं था ना हमारे पास कलेक्टेड ही नहीं था now we are actually going to collect it how much we are emitting and how much we need to contain but again the catch is there okay, according to carbon brief we were the largest we usually say historically we are not big emitters historically means from 1850 to 1990 we are not big emitters because we were not developed but currently according in 2018 we were the 18th largest emitter so 18th largest emitter का मतलब ये है कि अब 2018 से अब हमारी जो लास्ट ईयर एमिशन थी वो तकरीबन 512 टू 13 मेट्रिक टन CO2 थी सो नाउ वी आर कमिंग टू अ स्टेज जहाँ पे हम दुनिया में बड़े मीटर्स में आ जाएंगे एंड देन द होल फाइनेंस प्रॉब्लम विल कम टू अस टू बिकॉज अभी भी जो मेन फाइनेंस का बॉटलनेक है वो ये है कि द डेवलप्ड नेशंस इज सेइंग और द यूएस इज स्पेसिफिकली सेइंग दैट इफ यू डोंट ऐड चाइना आई एम नॉट गोइंग टू फाइनेंस and this time, even China said, "Okay, I want to finance. Come with me." And they said, we're up Trump, hai, so we are not willing to finance." So these are the problems which are in real sense going on. And what we need to do is we need to develop ourselves into a manner जहाँ पे हम आगे अपने केसेस को बेहतर प्रेजेंट कर सकें क्योंकि वनरेबिलिटी में भी अब शायद मुकाबला करना पड़ेगा इन द लॉन्ग रन to get the loss and damage finance, to get GCF, to get all the adaptation finance or the multinational or the Bretton Woods agreement के through जो हम देते हैं ADB से या बाकियों से. Now they said this COP, ADB actually committed that we are going to finance this region, but they are going to finance specifically the upper Indus Basin, which is more vulnerable. But again, we need finance for everything, and for that we need to harness those policies which are very central to us. In that regard, I am working on this specific climate hub scenario or the idea in which we can implant NCOC type modeling or monitoring units into the every districts. So these districts can represent as the lab of interventions where we can harness those data because 2022 में जो हमारे पास फ्लड आया था उसने एक 1/3 of the Pakistan was submerged and far flung areas का हमारे पास कोई डाटा नहीं था and that actually happened repeatedly क्योंकि फ्लड 1990 से प्रॉपर हमारे पास आ रहे हैं so now is the time for a paradigm shift and we need to install those sensors into every system into every region and और उसमें मस्जिदों के ऊपर आप लगाएं and that data should be collected into the DC office, and we need to active those district disaster DDMAs, management authorities. So these are the systems which the state of Pakistan is going to take initiatives and going to activate. And in the longer run, maybe we can become resilient, but we cannot fight the nature. So G7 have to reduce their emissions, and how they will going to do it? We are going to produce as much noise as we can to the top of our lungs with the attribution studies, which are scientifically evidence that you caused this problem and you need to pay more. That's what we need to do, and that's what we expect to do. So, this is from my side. If you have any more further questions, I'd be happy to answer. Thank you. Thank you so much, Sir Firha. अगर आप लोगों को किसी का भी कोई question है, feel free to ask. I saw a hand raised from Miss Anam Siddiq. If she is here, please you can ask your question. अगर कोई mic open नहीं करना चाह रहा तो you can ask his or her question in the chat box. अच्छा तला भाई, I have a question.
अभी हम लोगों ने देखा था कि यूएस इलेक्शंस हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस नाउ। अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू थिंक कि क्लाइमेट डायनामिक्स यूएस के रीजन के अंदर, यूरोपियन यूनियन के रीजन के अंदर और स्पेसिफिकली ग्लोबल साउथ के रेफरेंस से इस तरीके से चेंज होंगे? और स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट सेक्टर, क्योंकि वी ऑल नो दैट कि डोनाल्ड ट्रंप इज more closely working with the oil and gas development sector. So I just wanted to know कि आपके नज़दीक ये किस तरीके से शिफ्ट होगा प्रॉपरली, और COP30 के अंदर will we be seeing an effect of the US presidency elections? Well, specifically if you look at the COP ना, तो इसके अंदर दो तीन चीजें हुई हैं. First of all, this oil and gas thing. This is actually for the first time in COP28. The main buzzword was fossil fuel. कि हमने fossil fuel को text में add कर दी, and we need to get away from the fossil fuel. But again, this year we do not have seen any talks of it. और उसको अगले साल में शिफ्ट कर दिया गया कि हमने प्लेस तो किया है कि हम अब शिफ्ट अवे करेंगे फॉसिल फ्यूल से, पर कैसे करेंगे? दैट वाज एक्चुअली प्लेड बाय, यहाँ पे ऑयल एंड गैस की लॉबी अंदर आ जाती है, एंड द मेन मूवर वाज सऊदी अरेबिया. दैट वी नीड दैट यू एक्चुअली सेड कि हमें अपना शिफ्ट करना है, बट मेरी इकोनॉमी जो है उसको टाइम चाहिए थोड़ा. सो दे आर डिलेइंग नाउ दिस प्रोसेस. पेट्रो स्टेट्स जो हैं वो इसको डिले थोड़ा सा कर रही हैं कि अच्छा इसको थोड़ा सा कम कर लिया जाए, इसको थोड़ा डिले कर लिया जाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेट्रो स्टेट्स in which the three COPs have happened, Egypt, UAE, and this time Azerbaijan, all are petrostates. That is the main problem, first, initial. And the second thing you asked about the Trump. ट्रम्प के इलेक्शन से पॉलिसी चेंज होंगी, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि वो अपने जो उसने ईपी का हेड लगाया है, इज दैट पर्सन इज उसका अगर पॉलिटिकल करियर देखें तो rejected 85% of the climate policies which are the environmental policies which were flowed into the national house over there. So problem बहुत genuine है. और इसके टाइम के अंदर इन द लास्ट टाइम ही एक्चुअली इशूड लाइसेंस टू अलास्का के अंदर उसने पाइप के ऑयल एंड गैस के ड्रिलिंग के लाइसेंस दिए थे टू यूके कंपनीज. सो ही इज वेरी प्रो ऑयल and pro all of these things, and is a climate denier to the level where we can't even expect. अगर आप में से किसी को भी ट्विटर के ऊपर एलन मस्क का और ट्रम्प का जो वो थोड़ा सा अगर आपको याद हो, ट्विटर स्पेस याद हो, तो they were making fun of climate change because they find themselves immune to it. They can buy the climate buyouts. They know they have the resilience capacity in their economy. बट जो मरता है वो आम बंदा मरता है, और आम बंदे के लिए इस सिस्टम राइट के सिस्टम के अंदर तो कोई जगह है नहीं है. इट्स जस्ट अ मशीन which need to work. So in that regard, in the longer run, in respective to EU can do something, but again, the stakes lies come somewhere else. Like if we talk about Germany के अंदर अभी भी वो ऑयल एंड गैस के ऊपर रिलाई करते हैं. They are shifting towards renewables, but again, the point is they are not doing at the pace they need to. According to जो लास्ट ईयर COP28 में जो सबसे बिगेस्ट अलार्म था वो था जीएसटी का. और जीएसटी रिपोर्ट में हमारे पास था कि हमने 48% to 43% हमने अपने रिमूव करनी है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सिस्टम. बट टोटल एनडीसीज जो हमारे पास अभी हैं वो कर रही हैं बाय 2032 to 4%. दिस इज वेरी लेस व्हाट वी नीड टू डू. और इसमें हमने कुछ भी नहीं करना क्योंकि हम सिस्टम में ऐड भी नहीं कर रहे. जो करने वाले हैं वो चाह ही नहीं रहे हैं कि इसको हम कम किया जाए, बिकॉज somehow they think they are immune to it. But COVID-19 gave us a very best example that no one is immune to this, and it's going to be a problematic in the longer run. So that's my take to you. Thank you so much. If you have any question, you can ask. Yes, Mr. Faisal, you have raised your hand. Please feel free to ask. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आप भी जानते हैं कि चाइना जो है सबसे ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है करंटली सिनेरियो में देखें, और इंडिया को भी हम देखें तो इंडिया भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है और उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है. एज कम्पेयर टू बोथ ऑफ दी स्टेट्स, पाकिस्तान इज़ फार लैगिंग बिहाइंड. तो उसके इम्पेक्ट जो है वो तो पूरे रीजन पे आ रहे हैं. तो इसके लिए पाकिस्तान इंटरनेशनली एससीओ में कह लें या रीजनली कोई
आसियान जैसे वर्कआउट कर रही थी। तो इनके अंदर पाकिस्तान ने कोई ऐसा मोटिव प्रेजेंट किया, या उसके ऊपर पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी है कि इसको रोका जाए? क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट भी होता है 2016 में, तो उसके ऊपर भी वर्किंग एज सच चाइना या इंडिया के पर्सपेक्टिव में नहीं हुई, इतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और उसकी वजह से क्या है कि जैसे कि पाकिस्तान और आसपास के नेपाल, मालदीव, दूसरे स्टेट्स जो हैं, तो वो भी उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, और इवन काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, बिकॉज उनकी तो इकोनॉमी को भी फ़ायदा आ रहा है, किसी न किसी तरह वो कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान या ऐसी छोटी स्टेट्स जो हैं उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसके लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पे क्या कर रहा है? well, if you read the Paris Agreement ना, तो उसके अंदर आप इस चीज को देखते हैं कि पीकिंग जो है ना, जो इमिशन पीकिंग है वो वॉलेंट्री है और वो हर एक की अपनी है. China actually peaked its emission last 8 years or 6 years after the Paris Agreement. And that is why they have the highest emission. And they are going to say we are going to net zero by 2060. So they have a plan, they have a vision, they are working on it. But again, the point is कि डेवलपमेंट के अंदर यही तो सबसे बड़ा कैच है. यही तो मैं बता रहा हूँ कि पेरिस एग्रीमेंट की जो क्लॉजेज हैं, दे आर वेरी टेक्निकल इन अ मैनर के जहाँ पे हर बंदे को फ्रीडम है, हर मुल्क को फ्रीडम है कि वो अपनी मर्जी से काम कर सकता है. इंडिया इज इंक्रीजिंग इट्स एमिशन एंड इंडिया इज अगेंस्ट दिस. अगर आप उसकी डिप्लोमेसी देखें जो उसने COP 29 में की है, तो दे वर अगेंस्ट इसके 300 बिलियन बहुत कम है. बट अगेन दे आर द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर टू द ग्लोब. सो इंडिया खुद भी फाइनेंस नहीं कर रहा. द प्रॉब्लम लाइज इन टू द रेट ऑफ द सिस्टम. पेरिस एग्रीमेंट की रेट कितनी है? जिसने जितना कमिट किया वो उतना काम क्यों नहीं कर रहा? दैट इज द मेन प्रॉब्लम. एंड अगेन at the Pakistan level, what we can do, we can tell them that what they are doing specifically. Because again, वो उनके पास जो जवाब है वो उनका डेवलपमेंट का, that we are developing. The problem was not created by us, but it is actually accelerated. Because if you look at the historic energy consumption of the last 100 years, was equal to what we are consumed from 2016 to 2021 only. एक 100 साल में हमने जितनी एनर्जी कंज्यूम की है उतनी हमने 6 सालों में एनर्जी कंज्यूम की है. नाउ दिस इज द चेंज विच आई एम टॉकिंग अबाउट. पेरिस एग्रीमेंट में इसकी कोई जिक्र नहीं है कि जो कंजप्शन ज्यादा करता है उसको ज्यादा करना है. दे आर टॉकिंग अबाउट कि हमने एमिशन अकॉर्डिंगली करनी है. अब चाइना की पीकिंग इस साल एक्सपेक्टेड है 2025 में. probably they are going to peak it and then they are going to reduce it. So this is how the plan comes in. If we talk about Pakistan, Pakistan के भी net zero की timeline नहीं है हमारे पास at the national level. We have only pledges, some companies, कुछ international companies है जिन्होंने pledge किया, वैसे ही बाकी मुल्क नहीं है. So that is the main problem. We cannot, again, we cannot face the earth, the planet in a manner जहाँ पे वो properly अपनी engagement को रखे. If you want a planet to be resilient in the longer run, you need to observe it and you need to work together as a one unit. हम one unit में अभी enter ही नहीं हुए हैं. उसको करने के लिए एक और आपको trust factor चाहिए. We can talk to India, we can talk to Afghanistan, we can talk to China in this regard, but again, at what point? India asked us in February कि हम Indus Water Treaty पे बात करना चाहते हैं. But what we know कि उनके intentions क्या हैं अभी. मोदी जब तक है उनके intentions हमारे लिए अच्छे नहीं हैं. And that is what we are resisting. That's why we are asking कि World Bank इसमें आए या third party आए इसमें. Because India is going to do this, जैसे उसने unilaterally अपना कश्मीर को annex किया. That is the main critical things which we need to do. Yes, we need to talk with Afghanistan. I'm personally in contact with the Afghans in this regard, how we can develop our water resources more sustainable in the longer run. Because Indus Water Treaty is the first one जिसमें पानी डिवाइड किया गया था, शेयर नहीं किया गया था. हमें अफगानिस्तान के साथ ऐसी ट्रीटी करनी है जिसमें पानी हम शेयर कर सकें. That's very important to do. That's my take. Thank you, sir. क्या किसी को कोई और क्वेश्चन है? If there is any question, please feel free to ask. I guess there is no question. Thank you so much, Said Talha, for giving us your precious time, and it really means a lot for us
that you gave us your time and you came here at such a short notice. Looking forward to having you more in the future, and thank you so much. Okay, I'll be happy to contribute as much as we can. And best of luck to all of you. Take care. Thank you so much. So hello everyone, assalamu alaikum and good evening. Once again, this is Mohammed Daniel Kamal. अब जैसे हम लोगों ने बात की थी क्लाइमेट चेंज की अक्रॉस ऑल द वर्ल्ड, हम लोगों ने थोड़ी सी क्लाइमेट पॉलिसीज को भी टच किया था, क्लाइमेट गवर्नेंस को भी टच किया है, एंड यस वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट कॉप्स. बट नाउ आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट और रीजन के, हमारे स्पेसिफिकली रीजन के अंदर जो दो डेवलपिंग नेशंस हैं, दोस ऑन द पाथ टू बीइंग नेम्ड एज द डेवलप्ड नेशंस, हम उनके ऊपर थोड़ा सा बात कर लें और उनकी गवर्नेंस के ऊपर बात कर लें. क्योंकि क्लाइमेट डायनेमिक्स अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर नाम से देखा जाए तो इट सीम्स लाइक क्लाइमेट डायनेमिक्स में हम लोग बेसिकली इम्पैक्ट्स को डिस्कस करते हैं क्लाइमेट चेंज के, कौन कौन से इम्पैक्ट्स आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, क्या क्या असरात आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आपकी ह्यूमन लाइफ, इन टर्म्स ऑफ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ आपका इन्वायरमेंट, इन टर्म्स ऑफ आपकी सोशल लाइफ, इन टर्म्स ऑफ आपकी इकोनॉमिकल लाइफ. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम लोग इसको बड़े स्केल के ऊपर देखें तो क्लाइमेट चेंज से जो हमारे पास क्लाइमेट डायनेमिक्स आ रही है, that will be falling in the climate governance region. और for this today we will be discussing two more things, जिसके अंदर हमारे पास दो आप कह लें नामो निहाद कंट्रीज आती हैं, और नंबर 1 इज चाइना एंड नंबर 2 इज हमारे पास इंडिया. अगर हम लोग फर्स्टली चाइना को देखें तो हम लोगों को पता है कि चाइना सिटी लेवल के ऊपर दे आर द पायनियर्स फॉर एमर्जिंग लो कार्बन. के सिटी लेवल के ऊपर अगर हम लोग देखें तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस लाकर दे कॉल देमसेल्व्स एज लो कार्बन. लेकिन अगर हम लोग इसको तमाम कंट्रीज की एक्यूमुलेशन देखें ओवरऑल ग्लोबली, तो दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एमिटर्स इन द होल वर्ल्ड. चाइना का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं दोज आर वेरी कम्प्लेक्स, और अगर हम लोग इसको आम अल्फाज में कहें तो चाइना का जो इन्वायरमेंट है, जो उनका इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, डेट इज़ वेरी फ्रेजाइल. जो फ्रेजाइल उसको इस चीज़ ने बनाया है कि वहाँ पर लाजमी आप ये कह लें फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं. अगर हम लोग 2018 की बात करें, चाइना के जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस थी, दोज रीच्ड अराउंड 10 बिलियन टन्स, जिसने आप कह लें ग्लोबली उस ईयर अकाउंट किया था अप्रोक्सीमेटली 30% आप कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस को ग्लोबली. क्लाइमेट चेंज चाइना के अंदर एक अब पॉलिटिकल इशू इख्तियार कर चुका है अलॉन्ग विद अदर डोमेस्टिक इन्वायरमेंटल इश्यूज. और इन आने वाले सालों के अंदर चाइना के अंदर आप ये कह सकते हैं कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल इवेंट्स जो हुए हैं, बेसिकली जो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ चाइना के अंदर जो स्मोक पोल्यूशन हुई है, और स्मोक पोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ जो इनका पार्टिकुलेट मैटर था 2.5 के अराउंड, उस वजह से जो आप कह रहे हैं स्मोक पोल्यूशन हुई है इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट आप कह लें इस चीज़ को उन्होंने हवा दी है, क्लाइमेटिक इश्यूज को हवा दी है, और उस चीज़ से हमारे पास क्लाइमेट गवर्नेंस इश्यूज आए इन चाइनीज गवर्नमेंट या इन चाइना. गवर्नमेंट ने उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया था और उन्होंने ये कहा था कि हम लोग अपनी नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, जो उनको इन शॉर्ट में कहूँ कि NSDS है, हम लोग क्लाइमेट चेंज को इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के अंदर, और हम लोग जो हमारी ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग है उसको कंड्यूसिव बनाएंगे, उसको काबिल कदर बनाएंगे, मतलब लाजिम व मलजूम बनाएंगे कि वो रिसोर्स सेविंग की तरफ जाए और साथ साथ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सोसाइटी की डेवलपमेंट का इंतखाब करें. अगर हम लोग वैसे बात करें तो जो चाइना की क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी है, ये एक डोमेस्टिक इशू नहीं है, लेकिन अब अगर हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो इसके बहुत ज़्यादा आपके लिए तासुरात आते हैं, इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस या रिप्रिकॉशंस पूरी दुनिया को उठाने पड़ते हैं. चाइना की जो पोजीशन है और जो इंटरेस्ट है क्लाइमेट पॉलिटिक्स के अंदर, वो पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा अटेंशन उसने पकड़ी है, क्योंकि चाइना ग्रीन हाउस गैसियस इमिशंस के अंदर
ग्लोबली लार्जेस्ट एमिटर है, तो 2007 से लेकर अभी तक। इनिशियली चाइना ने आप कह लें क्लाइमेट नेगोशिएशंस के अंदर जब हिस्सा लेना स्टार्ट किया था, तो इस चीज़ को उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बनाया था, और वो भी इस एम के साथ बनाया था कि हम लोग इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे, हम लोग इसको डेवलपमेंट सेक्टर की तरफ लेके जाएंगे, एंड वी विल लेसनिंग और एमिशंस, हम लोग अपनी एमिशंस को कम से कम। और चाइना ने एक तरीके से अपने आप को ऑब्जर्वर की हैसियत दिलाई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद से। और जो हमारे पास UNFCCC बनी थी हमारे पास, जब यस्टरडे भी डिस्कस किया किस तरीके से UNFCCC बनी थी, तो तब से उसने अपने आप को एक मार्जिनलाइज्ड पार्टिसिपेंट की हैसियत देना स्टार्ट कर दी थी। एंड चाइना टुक पार्ट इन क्योटो प्रोटोकॉल, चाइना टुक पार्ट इन पेरिस का जो हमारे पास एग्रीमेंट था इन 2015, और इन 2015 जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर चाइना को एक एमर्जिंग लीडर के तौर पर साबित किया गया था। उसकी जो हैसियत थी टुवर्ड्स अदर कंट्रीज, दैट वाज इन टर्म्स ऑफ लाइक एन एमर्जिंग लीडर, चाइना एज एन एमर्जिंग लो कार्बन कंट्री। अगर हम लोग पेरिस एग्रीमेंट के अंडर देखें तो चाइना ने प्लेज किया था कि जो इसकी एमिशंस होंगी वो 2030 तक पीक करेंगी, और उसके बाद हम लोग अपनी एमिशंस को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। और इस तरीके से कि जो हमारी GDP होगी पर यूनिट ऑफ GDP से हम लोग हमारी एमिशंस को, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे बाय 60 to 65% 2030 तक, एज कम्पेयर टू 2005 से। लाइक 2005 से चाइना अपनी एमिशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, दे सेट के 2030 तक हम लोग हमारी 60 से 65% कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को रिड्यूस कर लेंगे। और उन्होंने कहा था कि हम लोग इस एम्बिशन को फुल्ली, आप कह रहे हैं, फुलफिल करने के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव वे के अंदर हम लोग इसको साबित करेंगे, इसको हम लोग एक कॉस्ट इफेक्टिव वे के अंदर हमारी एमिशंस को कम से कम करेंगे और इस एम्बिशन को अचीव करेंगे। जो चाइना के पॉलिसी मेकर्स थे, उन्होंने आप कह लें सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया एट सब नेशनल लेवल, और उन्होंने इस चीज को एक डेटाबेस के अंदर नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ये देखा कि कहाँ कहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की सोर्सेज हैं इन देयर कंट्रीज, कहाँ कहाँ पर हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल नजर आ रहा है, कि किस जगह पर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कम से कम कर सकते हैं, उसकी जो सोर्स है उसको कम से कम आप कह लें या तो खत्म करेंगे या मिनिमाइज करेंगे, और कहाँ कहाँ पर हमारे पास इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस आ रही हैं कि जो हमारी पॉसिबल पॉलिसीज बनेंगी वहां पर हम लोग क्यों लैग करेंगे। लाइक जहाँ पर हमारी मईशत का ज्यादा से ज्यादा जोर होगा, वहां पर हम लोग अपनी, एटलीस्ट हमें ये पता है कि हम लोग अपनी कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस को कम तो नहीं कर सकेंगे, तो एटलीस्ट वी शुड आइडेंटिफाई दोज एरियाज एज वेल। तो ज्यादा से ज्यादा सिटीज में इसमें पार्ट लिया एज दे बीइंग पार्ट ऑफ द सब नेशनल इंफॉर्मेशन, और उन्होंने चाइना को इमर्ज करवाया था किस तरीके से कि दे आर द कंट्री फ्रॉम अ लो कार्बन ट्रांजिशन, और अब दे आर एनहांसिंग देयर सस्टेनेबिलिटी। चाइना को ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस के अंदर एक बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। उसको किस वजह से अहमियत दी जाती है? उन्होंने जो अपना लो कार्बन ट्रांजिशन सॉल्यूशन मॉडल बनाया था, कि लाइक उन्होंने कहा था कि अगर ये हमारा सक्सेसफुल हो गया तो इसके जो आप कह लें इन्फ्लुएंस होगा ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस की अप्रोचेस के अंदर फ्यूचर के अंदर, वो बहुत ज्यादा होगा। कि हमारा अगर मॉडल सक्सेसफुल हो गया तो हमारे साथ जो बाकी की कंट्रीज हैं वो भी इस मॉडल को प्रॉपरली फॉलो अप कर सकते हैं और हमारे साथ काम कर सकते हैं मिलकर। अब चाइनीज गवर्नमेंट के लिए क्या था, जो सिटीज थे वो चाइना की गवर्नमेंट के लिए टॉप प्रायोरिटी पे थे, उनकी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी थी लो कार्बन डेवलपमेंट के लिए और क्लाइमेट एक्शंस के लिए। और 2019 के आखिर तक, लाइक द लेट 2019, चाइना ने अपनी जो अर्बनाइजेशन रेट थी फ्रॉम द माइग्रेशन ऑफ फ्रॉम द रूरल एरियाज टू अर्बनाइजेशन अर्बन एरियाज, किस चीज के लिए? बेटर कॉस्ट ऑफ लिविंग, आपकी क्वालिटी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, जॉब्स की चीज़ों के लिए, वी ऑल नो दैट। तो जो उन्होंने देखा था वो ये देखा था कि उनका जो अर्बनाइजेशन रेट है वो एक रिकॉर्ड तक पहुंच चुका था, 60% उनका इंक्रीज हुआ था बाय 2019 उनका अर्बनाइजेशन रेट। और ये उन्होंने कहा था कि बाय 2050 ये हमारा जो अर्बनाइजेशन रेट है इट विल बी एक्सपेक्टेड टू राइज 75%।
15% का और ज्यादा इंक्रीज देखा जाएगा बाय 2050। फिर उन्होंने कहा था कि जो लेट 2010s थे कि जो सिटीज अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ चाइना की एमिशंस को आप कहने प्रोड्यूस कर रही हैं, हम लोग उनके ऊपर सबसे ज्यादा पहले काम करना स्टार्ट करें। हम लोग उनको ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करें जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली साबित हो, और उनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा काम करें, 3 गुना ज्यादा काम करें एज कम्पेयर टू और रूरल एरियाज और उन एरियाज में जहां पर इनडायरेक्ट एनर्जी यूज है। चाइना की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने रियलाइज किया था कि जितने भी ये जो सिटीज, ये हमारी क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम का पार्ट तो है, बट ये हमारे क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है। और जो उन्होंने अपनी इंटरनेशनल एंड नेशनल क्लाइमेट पॉलिसी बनाई थी, वो अल्टीमेटली उन्होंने ये लाजिम व मलजूम करार दे दिया था कि हम लोग इसे लोकल लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे, चाहे हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी हो चाहे हमारी नेशनल पॉलिसी हो। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि हर सिटी इसके ऊपर फॉलो करेगा जो चाइना एक तरीके से सिलेक्ट कर लिया। और सिटीज को हम लोग प्रॉपरली सफिशिएंट फंड्स देंगे, ह्यूमन टेक्नोलॉजी के लिए भी, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए भी, और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज के लिए भी, ताकि वो ऐसे सिटीज बने जहां पर लो कार्बन एमिशंस हो। जीरो कार्बन तो नहीं हो सकता, जीरो एमिशंस टेक्निकली और आइडियली, सॉरी टेक्निकली अगर हम लोग बात करें तो जीरो एमिशंस को अचीव करना इज इम्पॉसिबल। ये सिर्फ थ्योरेटिकल बातें हैं, या एक तरीके से ये एक आइडियल बात है कि हम लोग जीरो एमिशंस को अचीव कर लेंगे बाय 2050 बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। यू कैन नॉट अचीव जीरो एमिशंस एट एनी कॉस्ट, क्योंकि आप चाहे जितने भी कर लो, इट इज अ लॉ कि वी कैन नॉट हैव 100% एफिशिएंसी, चाहे किसी भी आप कह लो मशीन की हो, आप कह लो आपकी अपनी, कुछ ना कुछ एफिशिएंसी जो है वो लूज होगी एज इन टर्म्स ऑफ वेस्ट ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस फॉलोइंग अप अगर हम लोग देखें तो बहुत ज्यादा कंट्रीज थे, उन्होंने इम्पोर्टेंस दी थी अपनी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सेंटर्स को, और उन्होंने कहा था कि हमें हाई टेक, हाई वैल्यू एडेड और इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियल इनोवेशन चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि जो हमारे सिटीज हैं उनको टैलेंट की जरूरत है, उनको टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उनको इंफॉर्मेशन की जरूरत है, और उनको कैपिटल की जरूरत है, एंड कैपिटल इन टर्म्स ऑफ मनी। तो चाइना बीइंग अ लार्ज एंड इकोनॉमिकली डाइवर्स कंट्री, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ज़्यादा तेज कर दिया था और अर्बनाइजेशन को भी ज़्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से उनको एक अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट देखनी पड़ी थी। और अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट किस तरीके से या किस तनासुब में, वो ये कि इकोनॉमिक की जो आप कहते हैं पावर थी वो तो सही जा रही थी, दे वर मनी मेकिंग मशीन, बट उन एट ऑन अनदर हैंड उनकी जो सोशल लाइफ थी that was also being disturbed, और उनके साथ साथ जो उनका environment था that was also being disturbed on another hand. So apart from these two things, कि they being running towards their economic power, they being running towards so-called, yeah, for the rest of the world being called as the developed nation, they were also facing some technical difficulties and some really big problems in their social life and as well as in their environmental factor as well. So इस वजह से जो आप कह रहे सब नेशनल एक्टर्स थे, जो सिटीज थे, उनको ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस के अंदर ज्यादा से ज्यादा फोकस दिया गया था, और उनको यही कहा गया था कि आप लोग हम लोग जो आपको क्रिएटिव क्लाइमेट पॉलिसीज प्रोवाइड करेंगे, आप लोग उन्हें अपस्केल करें और उसे अपने आप कह रहे लोकल लेवल के ऊपर उनकी इम्प्लीमेंटेशन करें। और इस वजह से जो सिटीज थे उनको ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर या ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस के अंदर इनोवेटिव आइडियाज और प्रैक्टिसेस के लिए डिफ्यूज करवाया गया था और उनको इम्प्लीमेंटेशन करवाई गई थी। सो इफ वी टॉक फर्दर, थोड़ा सा और इसको मजीद ले जाते हैं, एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द इंडिया। चाइना की जो पार्टिसिपेशन थी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस के अंदर, उसने एक आइडियल अपॉर्चुनिटी दी कि वो जो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपनी डिप्लोमेटिक रिफ्ट है उसे हील करे, और एक तरीके से उन्होंने जो अपनी इंटरनेशनल पोजीशन खोई थी इन द अर्ली 1990s उसे वो दोबारा से हासिल कर। और चाइना ने इनिशियली एक तरीके से उनके पास जो अंडरस्टैंडिंग थी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज रेजिम की, बट यस
विद एनफ नॉलेज, विद एनफ डेटाबेस, उन्होंने वो सारी की सारी जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज रेजिम की नॉलेज थी उसे इनकॉर्पोरेट करवाया। और अगर हम लोग शुरुआत में बात करें तो जो क्लाइमेट चेंज की लिमिटेड रिकग्निशन थी चाइना के अंदर, उसने चाइना को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया था इन सितंबर 1990। और ये कहा था कि जो चाइना का एम है दैट इज टू कोऑर्डिनेट डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस, कि वो डिप्लोमेसी की तरफ ज्यादा से ज्यादा रुझान देता है चाइना, और वो फेल करता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये अर्ली 1990s की बात है। फिर जब हमारे पास डिफरेंट समिट्स हुए थे, हमारे पास फिर UNFCCC बनी थी, एंड देन हमारे पास एज टाइम प्रोग्रेस्ड पेरिस एग्रीमेंट आया था, तो देन चाइना ने इस चीज़ों को भी ज़्यादा ध्यान दिया था कि यस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, दे हैव टू लुक आफ्टर द इन्वायरमेंट एंड दे हैव टू लुक आल्सो देयर सोशल लाइफ एज वेल। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा मजीद लेके आगे चले तो राइट नाउ चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा आपके लिए मल्टी लेवल क्लाइमेट पॉलिसीज आई हुई हैं, इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल भी हो जाए और इन टर्म्स ऑफ नेशनल क्लाइमेट पॉलिसीज भी हो जाए। और अभी हम लोग बात कर रहे थे लो कार्बन सिटीज़ की, तो थोड़ी सी उनकी टेक्नोलॉजी की बात कर लेंगे, थोड़ी सी उनकी इनोवेशन की बात कर रहे थे कि उन्होंने अपने ईयर्स के अंदर उन्होंने कुछ कुछ टारगेट सेट किए हैं चाइना ने, कि हमारी जो प्रोविंसेस हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोविंसेस इन चाइना, उन्होंने कहा हुआ है कि हमारी हर प्रोविंस के अंदर जो स्पेसिफिक सिटीज है, हम लोग उनको एक ईयर असाइन किया हुआ है, और बाय दैट ईयर दे विल बी इनकॉर्पोरेटिंग दोज टेक्नोलॉजीज, और दे विल बी इनकॉर्पोरेटिंग दोज इनोवेशंस एज वेल। अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे पास, जस्ट अ मिनट, सो अगर हम लोग बात करें जो मेजरली टेक्नोलॉजीज हैं या जो मेजरली इनोवेशंस हैं हमारे पास चाइना के अंदर, जो मेजरली इनोवेशंस हैं वो है उनका कार्बन मैनेजमेंट सिस्टम। चाइना ने ये आप कह लें इनिशिएटिव लिया हुआ है कि बाय 2025 दे हैव टू एस्टैब्लिश देयर कार्बन मैनेजमेंट सिस्टम। इन पाकिस्तान अगर हम लोग बात करें इन्वायरमेंटल साइंसेस की फील्ड के अंदर, वी हैव हर्ड अबाउट इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर हम लोगों के पास सर्टिफिकेशंस आते हैं इन टर्म्स ऑफ आईएसओ के स्टैंडर्ड्स। Just type a yes or no if you know the ISO standards. ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001। जो environment के हिसाब से technically तो that is ISO 14001। Just a minute. So sorry everyone, there were some home difficulties as well. तो हम लोग continue करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे आईएसओ की। अगर किसी को नहीं पता तो देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम लोग नाम देते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का, और उनका काम ये है कि उन्होंने लॉज कह लें या एक तरीके से दे हैव टू मेक सम रूल्स इन टर्म्स ऑफ एवरी डोमेन, और हर इंडस्ट्री का जो एक कंट्री के अंदर लग रही होती है, इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ केमिकल्स, इन टर्म्स ऑफ environment, in terms of public health, in terms of health safety, in terms of आप कह लें फ्लेवरिंग, जो मेजरली इंडस्ट्रीज होती हैं उन इंडस्ट्रीज को उन आईएसओ की सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है कि वो लोग फिर कल को ये बता सकें कि यस वी आर फॉलोइंग स्पेसिफिक क्राइटेरिया, वी आर फॉलोइंग द स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, और इस वजह से यू डू नॉट हैव एनी राइट फॉर टू कैंसिल और लाइसेंस। ISOs आर जस्ट लाइक लॉज, और हर कंपनी को इन लॉज को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है।
लेकिन स्पेसिफिक यहाँ एक तरीके से ये लाजिम नहीं है कि कौन सी कंपनी कौन सा स्पेसिफिक रूल या कौन सी स्पेसिफिक लॉ को फॉलो करे। अगर हम लोग बात करें तो मेजॉरिटी, अगर हम लोग हेल्थ सेफ्टी की बात करें या हेल्थ सेफ्टी के सेक्टर के अंदर बात करें तो देयर कम्स ISO 45001 कि जो कंपनीज हेल्थ सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही होती हैं या अपने लेबर्स की सेफ्टी या उनके पर्सनल आप कह लें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही होती है कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए उनकी इंडस्ट्रियल साइट के ऊपर या उनकी कमर्शियल साइट के ऊपर, सो दे हैव टू सर्टिफाई फ्रॉम द ISO। उन्हें अपनी सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ ISO 45001 के नाम से, और तब उनके पास जाके ये एक तरीके से दे ऑब्लाइज बाय कि हमारे पास हम लोग प्रॉपर्ली अपने लेबरर्स की ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं कि किस तरीके से वो अपनी जानों की हिफाजत कर सकते हैं इन इंडस्ट्रियल एरिया या इन कमर्शियल साइट। अगर हम लोग बात करें इन्वायरमेंट के एतबार से तो जो इंडस्ट्री लग रही होती है तो उसको भी EMS के अंदर या आप कह लें ISO से एक सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है कि जो हमारा लेट सपोज वेस्ट आ रहा होता है या जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होगी या इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो कहाँ कहाँ पे लगेगी, वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज होगी, जो हमारा वेस्ट जनरेट होगा उससे हम लोग कहाँ पे पहले स्टोर करेंगे, जो वेस्ट हमारा स्टोर होगा उसे हम लोग किस तरीके से ट्रीट करेंगे और ट्रीट करने के बाद उसे हम लोग कैसे आप कह लें डिस्पोज ऑफ करेंगे या डिस्चार्ज करेंगे। सो ये सारे के सारे जो पॉलिसीज बनती हैं, ये सारे के सारा जो आप कह लें मैपिंग होती है, दे हैव टू मेक या दे हैव टू शो ऑल दिस इन एन ऑडिट प्रोसेस, और ऑडिट प्रोसेस होने के बाद इफ दे गेट सक्सेसफुल या इफ दे गेट अ प्लस पॉइंट, तब जाके उनको इन्वायरमेंट के एतबार से ISO 14001 की सर्टिफिकेशन मिलती है। एंड देयर इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एज वेल, एनर्जी सेक्टर के अंदर भी, और जो एनर्जी सेक्टर के अंदर है दैट इज ISO 9000। अब हम लोग बात करते हैं वापस से चाइना की तरफ आते हैं, एंड आई रियली होप कि आपको ISO के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो चुका हो और किस तरीके से ISO की सर्टिफिकेशंस पाकिस्तान के अंदर इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के साथ साथ बाहर भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग वैसे देखना चाहो तो इंडिविजुअली भी आप ISO की सर्टिफिकेशंस ले सकते हो और आप लोग एक तरीके से लीड ऑडिटर्स कहलाओगे कि यस, जिस कंपनी को आपकी सर्विसेज की जरूरत होगी वो जिस कंपनी को आपकी सर्विसेज की जरूरत होगी ही और शी विल बी कॉन्टेक्टिंग यू और वो उस डोमेन के अंदर आपकी सर्विसेज देंगे। सो यस, यू विल बी द लीड ऑडिटर। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। हम लोग थोड़ा सा डिटेल हो चुके थे एंड वी वर फोकसिंग ऑन चाइना। तो चाइना की जो इनोवेटिव स्ट्रेटजीज थी या इनोवेशंस हैं, उन्होंने स्पेसिफिक टारगेट्स कुछ फोकस किए गए हैं, जिनमें हमारे पास पहला था कार्बन मैनेजमेंट सिस्टम। और चाइना ने ये कहा हुआ कि हम लोग अपने कुछ सिटीज के अंदर उन कार्बन मैनेजमेंट सिस्टम को बाय 2025 प्रॉपर्ली बना लेंगे, उनको स्टेब्लिश कर लेंगे। उसके बाद ये था कि दे विल बी डेवलपिंग लो कार्बन टेक्नोलॉजी इनोवेशन मैकेनिज्म, कि जो उनकी टेक्नोलॉजीज या जो इनकी इनोवेशंस होंगी उनको हम लोग लो कार्बन फ्रेमवर्क के थ्रू इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाएंगे, और ये भी उन्होंने एस्टेब्लिश करना है इस मैकेनिज्म को बाय 2025। फिर उन्होंने कहा था कि हम लोग मॉडर्न लो कार्बन एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे, एंड बाय मॉडर्न लो कार्बन एग्रीकल्चर देयर कुड बी फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर्स, अगर हम लोग वैसे बात करें, लेकिन स्टिल आई डू नॉट नो दैट मच इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर के किस तरीके से वो लो कार्बन एग्रीकल्चर को लेके चलेंगे। आई कैन बी रॉन्ग बट यस, आई विल बी डूइंग माय रिसर्च एंड देन आई विल बी लेटिंग यू नो इन द अपकमिंग डेज। उसके बाद अगर हम लोग वैसे बात करें तो उन्होंने ये कहा हुआ है कि जो हमारा कार्बन एमिशन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म होगा, जहाँ पर इस सारा का सारा डाटा रिकॉर्ड होगा, उसे हम लोग इम्प्रूव करेंगे बाय 2027। फिर जो हमारा कार्बन मार्किंग सिस्टम है, कार्बन मार्किंग सिस्टम है, इसके किस तरीके से कार्बन सोर्सेज की आइडेंटिफिकेशन होती है एंड देन दे हैव टू मेक या एक तरीके से दे हैव टू लेट द गवर्नमेंट नो कि कितनी ज्यादा एमिशन हो रही है इन टर्म्स ऑफ दैट मार्किंग। तो हम लोग उसको भी स्टेब्लिश करेंगे बाय 2025। फिर दे हैव सेट के जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हम लोग उसे भी लो कार्बन बनाएंगे, उसे भी ग्रीन बनाएंगे बाय 2025। अनदर एग्जांपल इज के उनका जो सप्लाई चेन सिस्टम है, दे विल आल्सो बी मेकिंग इट लो ग्रीन या लो कार्बन कह रहे हैं बाय 2025। और इस साल का जो उनका था, वैसे मैं आपको बता दूं तो वो ये था कि उन्होंने अपना जो डेवलपमेंट मॉडल है उसे एक्सप्लोर करना था,
और साथ साथ अपनी जो लो कार्बन एग्रीकल्चर थी उसको सपोर्ट करना था। तो आई गेस कि हम लोग थोड़ा सा चाइना को डिस्कस कर चुकी है, एंड आई रियली होप कि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आई कैन क्लियर दैट क्वेरी एज वेल। If you have any question, you can please ask me, and then we'll be moving forward to or another neighboring country, or that is also right now a talk of the town for many nations as compared to Pakistan. Take a minute or two, और आप लोग मेरे से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं regarding China. Thank you so much. मिस सनम, पेरिस एग्रीमेंट हमारे पास एक नेशनली, या मैं इसको इस तरीके से कहूँ कि एक नियर यूनिवर्सल एग्रीमेंट है, जिसके अंदर जितने भी हेड ऑफ स्टेट्स थे, और बाय हेड ऑफ स्टेट्स मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज जितने भी कंट्रीज थे 192 कंट्रीज टिल नाउ, उन्होंने साइन किया था और उन्होंने ये प्लेज किया था कि इस साल की, इस सदी के एंड तक, लाइक बाय द एंड ऑफ 2100, हम लोग हमारी जो पूरी अर्थ है उसका जो आइडियली टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हम लोग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। ये आइडियल है, लेकिन पेरिस एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने थोड़ा सा ये भी फ्यूचर के अंदर प्रोजेक्ट किया था कि अगर हम लोग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 1.5 डिग्री सेल्सियस का मार्क नहीं अचीव करेंगे, तो देन देयर विल बी आल्सो 2 मार्क्स जिनको हम लोगों को देखना चाहिए। तो जो सेकंड मार्क था वो ये था कि बाय द एंड ऑफ 2100 उन्होंने ये कहा था कि सो सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर हम लोग 1.5 डिग्री का मार्कअप नहीं अचीव कर सकते, या हम उसको आइडियली अचीव नहीं कर पाएंगे, तो देयर विल बी अ सेकंड मार्कअप, जिसे उन्होंने कहा था कि हम लोग हमारी पूरी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करें टिल 2 डिग्री सेंटीग्रेड बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। और उन्होंने कहा था कि लीस्ट अगर हम लोग ये भी नहीं कर पाएंगे, तो बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी हमें हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करने 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक, लेकिन 3 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग इस चीज को ना लेकर चले। तो दिस इज पेरिस एग्रीमेंट राइट नाउ, जो ऑन एन एवरेज पूरी वर्ल्ड का आप कहने जा रहा है, डेट इज नियर 2 डिग्री सेल्सियस, और पूरी दुनिया लगी हुई है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग इसको अचीव कर लें। लेकिन राइट नाउ जो आप कह लें एतबार है, जिस एतबार से दुनिया प्रोग्रेस कर रही है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और दे आर इन अ रेस, तो वो यही कह रहे हैं इन एवरी कॉप कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा जो मार्कअप है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज ना हो। सो आइडियली अचीव करना वो कहते तो हैं, बट दैट इज जस्ट अ टॉक ऑफ द टाउन, और वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। वो यही कहते हैं कि हम लोग जो ज़्यादा फोकस करें डेट इज कि वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज ना हो। सो दिस इज पेरिस एग्रीमेंट। पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है और साथ साथ बाकी नेशंस भी इसका हिस्सा है। No worries, Miss Anam. Yes, Miss Amna, you have raised your hand. As you mentioned that China has this target by 2025 that they will install this carbon mechanism, something like that, in all of their big cities. So are they being successful in this? अगर हम इसको फॉलो अप करें और अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो यस वैसे अगर मैं वैसे चाइना की गवर्नमेंट की या चाइना की गवर्नेंस की बात करें तो चाइना, आई एम सो सॉरी, चाइना उस वक्त तक अपनी सक्सेस को नहीं बताता पूरी दुनिया के सामने जब तक वो प्रॉपर्ली अचीव ना कर ले। राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, लेट्स सपोज हम लोग एजुकेशन सेक्टर के हवाले से बात कर लेते हैं। वी यूजुअली कंसीडर चाइना के एक तरीके से वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो यूएस के मुकाबले में, ईयू के मुकाबले में, यूरोपियन यूनियन के मुकाबले में, बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। और हम लोग चाइना को थोड़ा सा एक तरीके से लो ग्रेड समझते हैं, डी ग्रेड करते हैं इन टर्म्स ऑफ और एजुकेशन सिस्टम। इसको हम लोग थोड़ा सा इस एग्जाम्पल में ले लेते हैं। लेकिन
जब आप चाइना जाते हैं तो देन यू सी व्हाट दे ट्रूली आर। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें, वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ले लें, वहाँ की टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस ले लें, दोज आर 20 से 30 साल आगे की हैं एज कम्पेयर टू यूएस, एज कम्पेयर टू यूरोपियन यूनियन, एज कम्पेयर टू एन अदर कंट्री, चाहे वो जर्मनी हो जाए, फ्रांस हो जाए, पोलैंड हो जाए, इटली हो जाए, आपके जितने भी मेजर डेवलप्ड नेशंस हैं, उन तमाम से उनका जो आप कह रहे इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है वो बहुत ज्यादा आगे हैं। एंड तब तक वो अपनी इनोवेशन को शो नहीं करवाता जब तक वो एक डिजायर्ड रिजल्ट या एक तरीके से उस डिजायर्ड आउटकम को अचीव नहीं कर लेता। इन टर्म्स ऑफ ये आप कह रहे हैं लो कार्बन एमिशंस, चाइना तब तक अपनी प्रोग्रेस को प्रॉपरली नहीं बताएगा जब तक वो इस चीज को सपोर्ट अचीव ना कर ले। जी बिल्कुल, चाइना इज वर्किंग राइट नाउ, एंड चाइना के अंदर जो डिफरेंट स्टडीज हो रही हैं राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन, वो इस चीज को यकीनी बना रही है कि लो कार्बन की तरफ हम लोग जाएं। वो इस चीज को यकीनी बना रही है कि उनकी जो इनोवेशंस है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, बेशक छोटे स्केल पर हो, जब उनकी वो प्रॉपरली रिसर्च कंप्लीट हो जाए तो देन दे कैन कोलैबोरेट विद गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज, और वो इस चीज को नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर पार्ट बनाए, और इस चीज को वो पेटेंटाइज करवाकर इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर इस चीज को बड़े पैमाने के ऊपर इस्तेमाल करें ताकि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो सके, एक उनकी आपके लिए इकोनॉमी को बूस्टअप मिल सके, उनकी जो सोसाइटी है उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से यकीनी बनाया जाए कि उनकी जो सोशल क्वालिटी है, सोशल लाइफ है, उसको इम्प्रूव कर सके। और साथ साथ जो इन्वायरमेंट के अंदर उनका रुझान है या इनका इन्वायरमेंट के अंदर जो आप कह लें रिसर्च है, आप कह लें इन्वायरमेंट को जो उन्होंने सेव करना होता है उस चीज को भी वो अचीव कर सके। सो राइट नाउ जितनी भी रिसर्च वगैरह हो रही है वो बहुत अच्छे पैमाने पे रही है, लेकिन यस वो उस चीज को इतना ज्यादा शोकेस नहीं कर रहे होते जितना बाकी कंट्रीज कर रही। दैट इज फ्रॉम माय साइड। आई हैव रिसेंटली टॉक टू 3 or 4 एमफिल स्कॉलर्स जो कि वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान बेसिकली जो कि हैं, और वो ये कहते हैं कि अगर हम लोग किसी भी डोमेन की टर्म में ले लें चाइना को, तो उनकी जो रिसर्च है वो पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, बहुत ज़्यादा आगे हो रही है, एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ देयर सोसाइटी एंड द बेटरमेंट ऑफ देयर कंट्री। राइट नाउ मैं यही कहूँगा कि उनकी इनोवेशंस हो रही हैं, बट दे विल नॉट बी टेलिंग द वर्ल्ड जब तक उनका एक डिजायर्ड आउटकम अचीव नहीं हो सकता। And जब वो डिजायर्ड आउटकम उनका अचीव हो जाएगा देन दे विल बी टेलिंग द होल वर्ल्ड कि यस वी हैव अचीव्ड दिस एंड दिस। और ये उनकी खुद उन्होंने ये कहा हुआ है कि यस बाय 2025 या बाय 2027 वी विल बी अचीविंग दिस एंड दिस। सो यस उन्होंने कुछ ऐसा देखा हुआ है तो फिर वो ऐसा कह रहे हैं, एंड फॉर दिस हम लोग ये कह सकते हैं कि वी हैव टू वेट कि 2025 तक क्या क्या चीज चाइना आपके अचीव कर ले। सो आई गेस 1 more month to go and then we will be successfully moving forward to 2025। और then हम लोग ये देख सकते हैं कि हर महीने के अंदर चाइना की कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट कौन सी जा रही है और क्या क्या चीज चाइना ने अचीव कर ली है जो उन्होंने अपने टारगेट्स सेट किए हैं। That's what I can say till now। थैंक यू सो मच। जस्ट लेट मी नो कि इफ यू ऑल एग्री, क्या हम लोग चाइना से आगे अब इंडिया की तरफ चलें? थम्स अप, एनी रिएक्शन और इन चैट बॉक्स। यस Mimuna, Miss Mimuna, you have raised your hand, please feel free to ask a question। मिस Mimuna, आपका कोई क्वेश्चन था या you raised your hand in terms of for going towards India? यस, इंडिया की तरफ चलते हैं। Thank you so much, thank you so much। अच्छा, so अब we are moving towards one of our neighboring countries जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि एक तरीके से थोड़ा सा वॉर की सिचुएशन होती है, बट दैट इज जस्ट इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी और नेशनल सॉवरेनिटी की तरफ उनकी ज़्यादा है। हम इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे अबाउट कि किस तरीके से इंडिया इस तरीके से क्लाइमेट की डोमेन के अंदर उसको अंडरडॉग समझा जा रहा था, एंड नाउ इट इज बीइंग कॉल्ड एज अ ग्लोबल सोलर एनर्जी लीडर। ग्लोबल सोलर एनर्जी लीडर इस तरीके से कि
apart from China, इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर्स। या एक तरीके से जो सोलर पैनल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है वो इंडिया के अंदर बहुत है एज कम्पेयर टू चाइना। थोड़ी सी एग्जांपल्स को मैं इस तरीके से दे देता हूँ एंड देन वी विल बी मूविंग कंप्लीटली टुवर्ड्स इंडिया। कि चाइना ने अपनी सोलर एनर्जी या सोलर पैनल्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की थी इन टर्म, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2016 या 2017 के अंदर। इंडिया ने भी उसके 1 या 2 साल बाद स्टार्ट कर दी थी, बट दे डिडंट टेल कि उन्होंने कितनी ज्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। चाइना ने अपनी जो प्रोडक्शन स्टार्ट की थी अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, चाइना ने अपने सोलर एनर्जी या सोलर पैनल्स की प्रोडक्शन को सेल करना स्टार्ट कर दिया था टुवर्ड्स डिफरेंट एशियन रीजन्स, जिसके अंदर एशियन कॉन्टिनेंट्स, एशियन कंट्रीज, सॉरी, जिसके अंदर हमारे पास जो बेसिकली जो मेजर सेलर्स थे सोलर पैनल्स के चाइना की तरफ से वो थे पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान। ये ऐसे कंट्रीज है जो कि चाइना से सोलर पैनल्स दे रहे थे कि वो एक तो इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी की तरफ चले जाएं और रिन्यूएबल को ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करें। चाइना ने उसके 1 से 2 साल के बाद अपनी सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन को स्टार्ट किया एंड दे सेट या दे एम्ड कि वी विल नॉट बी टेलिंग अबाउट प्रोग्रेस के कितना ज्यादा हम लोग सोलर सेक्टर के अंदर आप कह लें बूस्ट अप कर चुके हैं, कितना ज्यादा हमारा रिजल्ट आ चुके हैं। लास्ट ईयर की रिपोर्ट है कि चाइना ने तो चले सेल कर दी, इंडिया इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर सब एशियन रीजन के अंदर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सोलर एनर्जी का। और नाउ इंडिया इज सेलिंग ऑल द सोलर पैनल्स जो उन्होंने प्रोड्यूस किए थे टू द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज। और इंडिया अपार्ट फ्रॉम चाइना वो वाहिद नेशन है जो कि सोलर एनर्जी की डोमेन के अंदर अपने आप को प्रॉपर्ली सस्टेन कर रहा है, कि उसके पास इतनी ज्यादा सोलर पैनल्स आ चुके हैं कि वो अपने हर घर के अंदर एक सोलर पैनल दे सकता है और आराम से उनकी जो कंट्री की आप कह लें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो शिफ्ट हो सकती है फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स टू द सोलर पैनल्स, आप कह लें सोलर एनर्जी। आफ्टर सस्टेनिंग द सोलर एनर्जी, तो उन्होंने अपने सोलर पैनल्स को सेल आउट करना स्टार्ट किया था टुवर्ड्स मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, जहाँ पे हमारे पास जो सारे फहरिस्त हैं, दैट इज कतर, दैट इज यूएई। और दे बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट आप कह लें बायर्स फ्रॉम इंडिया, they are helping the India to sustain more in terms of economy as well। ये उनकी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग तर होती जा रही है, क्योंकि इंडिया को पता था कि सब एशियन रीजन के अंदर कोई भी हमारे पास बायर नहीं होगा, कि सारा का सारा जो आप कह लें सोलर एनर्जी का माल है वो चाइना से आ रहा है। और इंडिया के पास देन देयर वाज, चूंकि ब्रिक्स है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका की जो आप कह लें कोलैबोरेशन थी इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग इन देयर ऑन नेशनल करेंसी एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर। तो इस वजह से जब हमारे पास मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी आए थे हिमायत के अंदर ब्रिक्स की, तो इंडिया के जो ताल्लुकात थे वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से ज़्यादा अच्छे हो गए थे। और तब जाकर ये तिजारत जो थी सोलर सेल्स की या सोलर पैनल्स की वो ज़्यादा अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के दरमियान और इंडिया के दरमियान। और अब इंडिया इज मेकिंग मनी फ्रॉम देयर सोलर एनर्जी सेक्टर। तो इस वजह से इंडिया को नाम दिया जाता है कि किस तरीके से ग्लोबल सोलर एनर्जी लीडर बन चुका है। अच्छा, सो आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ आ चुका हो कि किस तरीके से देयर इज आप पहले कांटे का मुकाबला इन टर्म्स ऑफ इंडिया एंड इन टर्म्स ऑफ चाइना। अच्छा, अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इसका थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशंस जो हो रही होती हैं, इंडिया एक बहुत ही लंबे अरसे से इस चीज़ को एक अंडरडॉग की तरह देख रहा होता है, कि वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, वो इस चीज़ को परसीव कर रहा है अनविलिंगली, लाइक उसका ज़्यादा से ज़्यादा रुझान नहीं है, लेकिन स्टिल इट हैज़ टू ऑब्जर्व ऑल दिस क्लाइमेट नेगोशिएशंस जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हो रहे हैं। और फिर वो कमिट कर रहा होता है टुवर्ड्स क्लाइमेट मिटिगेशन गोल्स। किस वजह से? कि उन्हें अपनी एक अच्छी इमेज देनी है और ताकि प्रोजेक्ट्स जो हैं, जहाँ कह रहे हैं जो ग्लोबल कोलैबोरेशंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो इंडिया है वो ये वाला चीज़ तो कर रहा है, लेकिन वो अपना एक सेकंड रोल ये भी अदा कर रहा है कि जो फेलो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो उनको परसुएड कर रहा है कि आप भी यही चीज़ करें जिस तरीके से हम कर रहे हैं। सो बेसिकली दे आर जस्ट सेलिंग आउट देयर स्ट्रेटेजी कि वी हैव इम्प्लीमेंटेड इट, वी have been successful, you can also take this from us and you can also be successful just like us।
So India is just serving as their role as a leader and as a businessman, as a business person as well, I suppose. तो इंडिया ने फिर इस चीज को एक और चीज की आर्गुमेंट दी थी और ये कहा था कि चूंकि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं उन्होंने क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को जनरेट किया है, तो ये उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज को सॉल्व करें किस तरीके से कि जो उनकी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है उनको रिड्यूस कर सके एट होम लेवल, ऐसे एट डोमेस्टिक लेवल, और वो डेवलपिंग कंट्रीज को एमिशन रिडक्शन के लिए फंड प्रोवाइड करे ज्यादा से ज्यादा। और अगर हम लोग वैसे देखें, इस नजरिए से देखें, तो कोई भी इंडिया से ये तवक्को नहीं रखता या ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि इतनी ज्यादा अच्छी केस स्टडी को लेकर आएगा कि वो कंपेयर करने लगे कि जो इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स चल रही है डिफरेंट नेशंस के दरमियान या डिफरेंट रीजन्स के दरमियान वो किस तरीके से चल रही है और इंडिया वहां पे कहाँ पे अपना पार्ट प्ले कर सकता है या कहाँ पे वो अपना रोल अदा कर सकता है। सो जो हमारे पास आप कह लें ये G77 है और G77 स्टैंड्स फॉर ऐसी 77 स्टेट्स आउट ऑफ 134 डेवलपिंग कंट्रीज जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंडिया उनमें अपनी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर की तौर पे हैसियत रखता है पॉपुलेशन के लिहाज से भी और अपना लार्ज मार्केट साइज रखने की हैसियत से भी कि पॉपुलेशन में भी तो चलो इंडिया लाइक इज प्लेइंग अ गुड रोल, बट मार्केट के एतबार से भी दे हैव अ लार्ज मार्केट साइज। तो G77 के अंदर हमारे पास इंडिया बहुत ज्यादा अपना एक खास रोल अदा कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि G77 से भी कोई ताकतवर चीज है तो यस देयर इज G20, और G20 स्टैंड्स फॉर ग्रुप ऑफ 20। ये एक ऐसा इंटरनेशनल फोरम है जहाँ पर जो गवर्नमेंट्स है और जो सेंट्रल बैंक के आप कह रहे गवर्नर्स होते हैं डिफरेंट 19 कंट्रीज से और यूरोपियन यूनियन से, वो आपस में आते हैं, वो आपस में मिलकर बैठते हैं और वो मुआहिदे करते हैं। और उसके अंदर G20 का एक समिट हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग इस साल या लास्ट ईयर, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दैट ईयर की G20 समिट कब हुआ था। इंडिया प्लेड दैट पार्ट और मेरे ख्याल से कि इंडिया के अंदर ही वो G20 समिट हुआ था और उसके अंदर हमारे पास इंडिया की जो इमेज थी वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई थी कि किस तरीके से इंडिया अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेके चल रहा है। वो इंडिया आप कह रहे हैं पूरे रीजन की पॉलिटिक्स को लेके चल रहा है, क्लाइमेट पॉलिटिक्स के अंदर भी, और अपनी ये आप कह रहे हैं रीजनल पॉलिटिक्स को भी लेके चल रहा है, और किस तरीके से इंडिया इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स शेपिंग या बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन। और तब जाकर फिर इंडिया कोलैबोरेटेड विद ब्राजील, रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका कि हम लोग हमारी ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर नेशनल करेंसीज। और हम लोग जो यूएस डॉलर है जिसको इंटरनेशनली ये क्लेम किया गया था कि ट्रेडिंग के लिए यूएस डॉलर को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, हम लोग उस चीज को हटाते हैं और हम लोग अपनी नेशनल करेंसीज के अंदर ट्रेडिंग करते हैं एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ जो प्रोजेक्ट्स वगैरह करने पड़ेंगे वो हम लोग अपने आप कहने करेंसी के अंदर करेंगे। एंड जस्ट अ मिनट आई एम सो सॉरी गाइस, इट वाज जस्ट माय पैरेट, और अगर कोई मजीद आवाज आएगी तो प्लीज सॉरी फॉर माय पैरेट एंड मी। सो लेट अस गेट बैक टू वेयर वर वी। हम लोग ब्रिक्स को डिस्कस कर लिया था, हम लोगों ने G20 को डिस्कस कर लिया था और हम लोगों ने G77 को देख लिया था। अब हम लोग मजीद आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से इंडिया इज प्लेइंग अ रोल इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ क्लाइमेट लीडर। लेकिन उससे पहले हम लोग एक और चीज को देख लेते हैं कि इंडिया के अंदर एक कम्प्लेक्स क्लाइमेट फिल्म है जो एक तरीके से किस एक फॉर्मेशन बनाता है इन टर्म्स ऑफ उनकी जो क्लाइमेट पॉलिसी बन रही है या उनकी जो डोमेस्टिक क्लाइमेट पॉलिसी है
वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट होती चली जा रही है। और उसने जो इंडिया का क्लाइमेट प्रोसेस है या एक तरीके से इंटरनेशनल आप कह लें नेगोशिएटिंग स्ट्रेटेजी है, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल कर दिया है। उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट नेगोशिएशन वो और ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। एंड बाय क्लाइमेट ट्रिलेमा इट मीन्स के इंडिया इज लैगिंग इन 3 सेक्टर्स जो इस चीज़ को लेके आगे बढ़ा रहे हैं इंडिया की आप कह लें डेवलपमेंट को इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट वर्ल्ड या इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट नॉलेज कह लें। और जो क्लाइमेट ट्रिलेमा है उसके अंदर हमारे पास नंबर 1 इज क्लाइमेट, नंबर 2 इज एनर्जी, एंड देन हमारे पास जो थर्ड सेक्टर आता है दैट इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारे पास आता है इन्वायरमेंट का सेक्टर कि देयर विल बी एनर्जी सिक्योरिटी, देयर विल बी हमारे पास क्लाइमेट सिक्योरिटी, और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड सेक्टर आता है दैट इज इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। और बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट आप कह रहे हैं ट्राइलेमास, लेकिन जो ग्लोबल साउथ के अंदर बेसिकली ज़्यादा प्रेफर किया जाता है वो इन्हीं 3 की आप कह लें डोमेन के अंदर होता है। और अगर हम इसको ज़्यादा मजीद स्पेसिफाई कर लें तो हमारे पास जो क्लाइमेट ट्रिलेमा होता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ कार्बन एमिशंस, जिसमें हमारे पास एक जो पूरे ट्राइंगल का आप कह लें साइड होल्ड की होगी वो कार्बन एमिशंस ने की होगी, एक ने की होगी साइंस बेस्ड टारगेट्स जहाँ उनके जो रिसेंटली कंट्रीब्यूशंस होती हैं जो उनके टारगेट्स उन्होंने बनाए होते हैं, और एक जो आप कह लें साइड होल्ड की होगी वो की होगी नेट जीरो आप कह लें कमिटमेंट्स में। सो दिस इज अ क्लाइमेट ट्राइलेमा स्पेसिफिकली अगर क्लाइमेट चेंज के डोमेन में देखा जाए। लेकिन अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें तो ओवरऑल हमारे पास जो क्लाइमेट ट्राइलेमा फॉलो किया जाता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी, in terms of climate security and in terms of environmental governance। तो इस क्लाइमेट डिलेमा ने इंडिया को थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मेशन के अंदर मुश्किलात दी हैं इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट पॉलिसी प्रेफरेंसेस। एंड डेवलप्ड कंट्रीज अगर हम लोग बात करें तो वो इस चीज़ को ज़्यादा नहीं देखते, वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते। उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो रुझान होता है वो अपनी पर कैपिटा एनर्जी यूजेज के ऊपर होता है कि किस तरीके से उनकी जो पर कैपिटा एनर्जी यूजेज है वो कम हो रही है, वो ज़्यादा हो रही है। वो अगर तो वो ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब कि दे हैव टू कंज्यूम या दे हैव टू यूटिलाइज मोर ऑफ देयर नेचुरल रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अगर उनकी पर कैपिटा एनर्जी यूजेज कम है तो इसका मतलब कि दे विल बी कंजर्विंग देयर नेचुरल रिसोर्सेज इन अ गुड मैनर, और उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है दैट विल बी, अगर तो फॉसिल फ्यूल की मद में है तो वो बहुत ज़्यादा कम होगी, अगर तो वो रिन्यूएबल की मद में है तो वो भी एक तरीके से खास लेवल के अंदर या एक खास आप कह लें क्वालिटी के थ्रू मेंटेन की जा रही है। उसके उनकी जो रिन्यूएबल सेक्टर है उसको ज़्यादा आप कह लें उसके ऊपर ज़्यादा लोडेज नहीं आ रही। तो अगर हम ऐसे बात करें तो नेशनल लेवल के ऊपर जो इंडिया की क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल इंडिया की अगर हम बात करें और नेशनल लेवल के ऊपर और इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनकी प्रोविंसेस हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसकी इनकी पंजाब एग्जांपल के अंदर उनकी तमिलनाडु, दीज आर सम ऑफ द स्टेट्स। तो क्योंकि ये वाली स्टेट्स है और नेशनल लेवल के ऊपर क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को उस कंट्री के पॉलिटिकल एजेंडा के अंदर इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, ये वैसे मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन ऑन एन ऑपोजिट लेवल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी है। इसी वजह से वो यही कहते हैं कि वी विल नॉट बी बैकिंग डाउन, हम लोग हमारी एमिशंस को कम से कम नहीं करेंगे। एंड जस्ट अ मिनट। Guys, I'll be apologizing from my side.
जो कंटिन्यूस डिस्ट्रप्शन आ रही है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है तो सिंसियर अपॉलजीज फॉर माय साइड। तो हम लोग बात कर रहे थे क्लाइमेट डिलेमा की। हम लोगों ने क्लाइमेट डिलेमा की बात कर ली थी। हम लोगों ने ये बात कर ली थी कि किस तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होता है उनकी पर कैपिटा एनर्जी यूजेज के ऊपर, और रिलेटिवली अगर हम लोग बात करें तो उनकी जो पर कैपिटा यूजेज है वो ज़्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ इंडिया। और अगर हम यूएस की एग्जांपल लें तो यूएस की जो पर कैपिटा एनर्जी यूजेज होगी वो 10 गुना ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी भी पॉवर्टी का जो इशू है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेसिंग इशू है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप कहने फोकस किया जा रहा है। इंडिया के अंदर गुर्बत बहुत ज़्यादा है और इस वजह से जो उनका देयर इज वन थिंग जीडीपी, देयर इज ऑल्सो अनदर थिंग जीएचपी, एंड जीएचपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोडक्ट। और ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोडक्ट इज जस्ट लाइक कि किस तरीके से एक सिटीजन अपने कंट्री की गवर्नमेंट से कितना ज़्यादा हैप्पी है एंड हाउ इज ही डूइंग इन हिज और हर ऑन कंट्री, क्या वो अपने आप को सस्टेन कर पा रहा है अपने कंट्री के अंदर या नहीं। तो इस वजह से जो इंडिया का जीएचपी है दैट इज रियली लो। और जो जीएचपी के अंदर वैसे फन फैक्ट सबसे ज़्यादा जो नंबर 1 रैंक कर रहा है दैट इज भूटान, और पाकिस्तान जीएचपी के अंदर एक खास सी अच्छी पोजीशन पर है एज कम्पेयर टू इंडिया। टिल नाउ हमारे पास इतने ज़्यादा इशूज हैं। हम लोग बात कर रहे थे इंडिया की। पॉवर्टी इंडिया के अंदर एक प्रेसिंग इशू है डोमेस्टिकली भी, और उनकी जो इंटरनेशनल डिसीजन मेकर्स उनकी हेल्प कर रहे होते हैं उनके नज़रिए से कि इसके अंदर जो इनके डिसीजन मेकर्स आते हैं उनमें आप कह लो इकोनॉमी सेक्टर से भी आएंगे, उनके फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, उनका पब्लिक ओपिनियन भी मद्देनजर रखा जाता है डिसीजन मेकिंग के अंदर कि किस तरीके से वो इस इशू को देखते हैं, किस तरीके से ये इशू रिजॉल्व होना चाहिए उनके नज़दीक, और किस तरीके से आप कह लो कि ग्रोथ रेट को मजीद बढ़ाया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ अदर सेक्टर्स, और पॉवर्टी का जो रेट है उस चीज़ को कम किया जा सकता है। और इस चीज़ की वजह से वो क्लाइमेट मिटिगेशन को एक थ्रेट के तौर पर देखते हैं, और वो यही कह रहे होते हैं कि जो डेवलपमेंट के लिए हमें एनर्जी सिक्योरिंग होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और हम उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे एज कम्पेयर टू कंजर्विंग और क्लाइमेट, एज कम्पेयर टू कंजर्विंग और इन्वायरमेंट। और इसका मतलब यही था कि डेवलपमेंट के लिए दे विल बी नीडिंग एनर्जी, फॉर एनर्जी लेट्स सपोज दे विल बी नीडिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए दे विल नॉट बी स्विचिंग टुवर्ड्स द रिन्यूएबल्स, दे विल बी ऑप्टिंग फॉर द फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इर्तिकाब करेंगे एज कम्पेयर टू रिन्यूएबल एनर्जी के, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी जो उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी फॉर द ऑन डेवलपमेंट। और इस चीज़ को वो डिबेट के तौर पर देखते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर नेशनल लेवल। इंडिया लेकिन एट with like many other developing countries बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से वल्नरेबल है। वी ऑल नो दैट कि जस्ट लाइक पाकिस्तान, इंडिया इज आल्सो फेसिंग विद अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। इसमें हमारे पास इनकी फ्लडिंग का आता है इशू, उनके पास आपके हीट स्ट्रोक्स का इशू आता है, उनके पास ड्राउट का इशू आता है, उनके पास देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेसिंग इश्यूज, अर्थक्वेक का भी आता है, लैंडस्लाइडिंग का भी आता है, क्योंकि जस्ट लाइक पाकिस्तान देयर विल बी अ लॉट ऑफ पहले माउंट के लैंडस्लाइडिंग इन Indian region as well. So just like other developing countries, India is also extremely vulnerable to the effects of climate change. साथ ही साथ वो अपनी पॉपुलेशन को, जो कि उनका पूरेस्ट सेक्शन है, क्लाइमेट चेंज के एतबार से ग्रेटेस्ट रिस्क के तौर पे देखते हैं, क्योंकि एक तो वो गुर्बत के अंदर है, वो गुर्बत में मुब्तला है, गुर्बत के अंदर मुब्तला होने की वजह से they will be living towards the nearest आप कह लें उन जगहों पर रहेंगे जहाँ पे क्लाइमेट चेंज के एतबार से रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, और ताहम उन जगहों पर रहने की वजह से दे विल बी फेसिंग मोर एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो अच्छी जगहों पर रह रहे हैं, जो एक हायर एरियाज के पर रह रहे हैं, जहाँ पर क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स शो अगर होंगे तो बहुत कम होंगे एज कम्पेयर टू दोज एरियाज जहाँ पे क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हायर केस में शो होंगे। तो इस वजह से इंडिया के लिए पॉवर्टी का जो इशू है दैट इज अ रियल मेजर कंसर्न। उसके बाद ये देखा जाए तो ये है कि जो इंडिया की क्लाइमेट पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है कि अब उसे
अपने जो फेडरल सिस्टम है, जो उसका मल्टी टीयर्ड फेडरल सिस्टम है, उसके अंदर उसे बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई थी, और विद एज द टाइम प्रोग्रेस उसकी एवोल्यूशन हुई है, वो अपग्रेड हुआ है, वो और ज़्यादा मॉडिफाई हुआ है। और वो किस तरीके से हुआ है? उस तरीके से हुआ है कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा क्लाइमेट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इंडिया की पॉलिसीज बहुत ज़्यादा क्लाइमेट के रिवॉल्व हुई हैं और इन्हें इनिशिएट किया गया है। इस वजह से वो इन्वॉल्व करते हैं एक या एक से ज्यादा गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर, आप कह लें पब्लिक को, प्राइवेट एक्टर्स को, अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट के साथ अगर कोई आप कह लें प्रोजेक्ट वगैरह होगा, उसके अंदर थोड़ी सी पब्लिक का भी ओपिनियन लिया जाएगा, उसके अंदर प्राइवेट एक्टर्स का भी ओपिनियन लिया जाएगा, क्योंकि एट द एंड देयर विल बी पब्लिक एज वेल जो कि उस डिसीजन से इफेक्ट होगी, और प्राइवेट एक्टर्स भी या प्राइवेट सेक्टर भी थोड़ा सा इफेक्ट होंगे, इफ नॉट इन अ मेजर आप कह लें परसेंटेज, लेकिन स्टिल दे विल बी गेटिंग अफेक्टेड। तो इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो अपने लेवल्स के ऊपर पब्लिक का भी ओपिनियन लेती है, प्राइवेट एक्टर्स का भी ओपिनियन लेती है। अब अपनी सक्सेसफुल इस चीज को बनाने के लिए, जो अपनी क्लाइमेट पॉलिसीज है उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए वो कोलैबोरेशन भी करती हैं और वो नेगोशिएशंस भी करती हैं। और इस वजह से जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो क्लाइमेट चेंज के एतबार से मल्टी टीयर्ड है। कि फर्स्टली लेट्स सपोज देयर विल बी कोलैबोरेशन या देयर विल बी नेगोशिएशंस विद द पब्लिक सेक्टर। उसके बाद आप कह लें अपर लेवल के ऊपर होगी, अपर लेवल के तबकों से आप कह लें नेगोशिएशंस होंगी। उनके बाद प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट सेक्टर्स आ जाते हैं। लेट्स सपोज अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें, और इंडिया के अंदर भी आई सपोज वैसा ही होगा कि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास जो सेक्टर्स हैं डेट इज और ट्रांसपोर्ट सेक्टर और ऑयल सेक्टर और आप कह लें एजुकेशन सेक्टर और न्यूक्लियर सेक्टर, और रिलेटिवली वैसे ही ऐसे सेक्टर्स होंगे इन टर्म्स ऑफ इंडिया एज वेल जो क्लाइमेट के एतबार से अफेक्ट होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इस वजह से इंडिया की जो गवर्नमेंट होगी वो इन सेक्टर से भी आप कह लें प्रॉपरली नेगोशिएट करेगी, इफ नॉट क्लियरली, इफ नॉट ज्यादा से ज्यादा, तो बट स्टिल दे विल बी नेगोशिएटिंग। अब अगर हम लोग बात करें इंडिया की इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी के ऊपर, तो क्लाइमेट जो इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशंस थे इंडिया के, तो वो यहाँ आपके लिए इंटरनेशनली जो क्लाइमेट नेगोशिएशन स्टार्ट हुए थे वो 1990 से स्टार्ट हुए थे, और 2007 के दरमियान में वो उन्होंने प्रमाण होना स्टार्ट किया था। और उसके अंदर डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और एनजीओज इन्वॉल्व हुई थी। उन्होंने अपना एक पॉलिसी पैराडाइम दिया था अनडिस्प्यूटेड, और जो इंडिया की क्लाइमेट पॉलिसी के लिए बहुत ज़्यादा एक खास रोल अदा किया था। और उन्होंने कहा था कि इंडिया just like other countries, other developing countries, is not responsible for climate mitigation. Climate change का जो प्रॉब्लम है वो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ने क्रिएट किया है, इस वजह से दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। उनको इस चीज की जिम्मेदार ठहराया जाए, ना कि इंडिया को, और वो इस चीज की प्रॉपरली जिम्मेदारी लें कि ग्लोबल वार्मिंग उनकी वजह से फैल रही है और उन्हें अपनी ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस को कम से कम करना पड़ेगा, ना कि इंडिया या बाकी इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज। तो इंडिया ने अपने आप को इंडिया ने एक तरीके से अपने आप को एनिमी बना लिया था, या अपने आप को ओपोनेंट बना लिया था उन कंट्रीज के मुकाबले में जो जी के आप कहने रिडक्शन के लिए कमिट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, पाकिस्तान लेट्स सपोज हमारे पास जो GHGs की एमिशंस हो रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज 0.86%, लेस देन 1%, लेकिन फिर भी हम लोग ये कमिट करते हैं कि वी विल बी रिड्यूसिंग और GHGs एमिशंस बाय नेक्स्ट, लेट्स सपोज हम लोग इसको 2 टाइम्स कम करेंगे, 0.86 से हो जाएगा हमारे पास 0.26 लेट्स सपोज। तो इंडिया विल बी अपोजिंग अस, और वो ये कहेगा कि व्हाई वी विल बी सपोर्टिंग यू, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि हम लोग हमारी ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस को कम से कम करेंगे। हालांकि आपको ये कहना चाहिए कि डेवलप्ड नेशंस ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, और उनको ज्यादा से ज्यादा आप कह रहे हैं रिडक्शंस को कम से कम करना चाहिए। और इसी वजह से इंडिया ने एक तरीके से प्रॉपर्ली अपोज किया था इस साल COP29 के अंदर कि जो बजट आप लोग हमें दे रहे हैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग के अंदर वो बहुत ज्यादा कम है, एंड वी आर
specifically saying no, we will be boycotting this financing budget. आप लोगों को बजट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए और अपने ग्रीन हाउस गैसेस रिडक्शंस को कम करना चाहिए एट अ फास्टर पेस, और आपको जो अपनी परसेंटेजेस है उनको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए एज कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज। ये हो गई एक बात। अगर हम लोग वैसे बात करें तो इंडिया ने एक तरीके से क्लाइमेट लीडरशिप को भी ऑफर किया है टुवर्ड्स डिफरेंट कंट्रीज। अगर ऑफर नहीं किया तो उन्होंने कोशिश की थी, और उन्होंने ये कोशिश इसलिए की थी कि जो क्लाइमेट जस्टिस के इश्यूज हैं वो इंटरनेशनली ज्यादा से ज्यादा आप कह लें अपेयर हो, उनको ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रेडिक्शन हो, उनका रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनली आप कह लें आया, जल्दी से जल्दी आया जाए, और इंटरनेशनल मीडिया उस चीज़ को हाईलाइट करे कि किस तरीके से क्लाइमेट जस्टिस के प्रॉब्लम्स आ रही हैं और किस तरीके से इन इश्यूज के हल निकाले जा रहे हैं। और क्लाइमेट जस्टिस किस लिए इम्प्लाई होता है, वो इसलिए होता है कि जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं या डेवलप्ड नेशंस हैं वो प्रॉपरली अपनी जिम्मेदारी लें और वो प्रॉपरली इस चीज़ की अकाउंटेबल ठहराया जाए उनको कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस, और वो अपनी रिडक्शन एफर्ट्स को कम ज़्यादा से ज़्यादा करें कि यस वी विल बी रिड्यूसिंग और जीएचजी एमिशंस एट दिस लेवल। हमारी जो परसेंटेज है अगर वो 10% थी आज के साल में, तो आगे आने वाले 2 से 3 सालों में हम लोग उसको 30% तक ले आएंगे, और वी विल बी स्ट्रांगली अपोजिंग टू दोस इंडस्ट्रीज जो कि ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस कर रही हैं। सो ये क्लाइमेट जस्टिस की कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि इंडिया उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहा था और वो इंटरनेशनली बता रहा था। एंड आई रियली होप कि आपको थोड़ा सा समझ आ चुका हो कि किस तरीके से इंडिया इज वर्किंग राइट नाउ। अगर वैसे भी हम लोग बात करें तो इंडिया ने 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो गोल है पेरिस एग्रीमेंट का वो एक्सेप्ट किया था, और उसने पेरिस एग्रीमेंट का वो उसको रेटिफाई किया था। इंडिया था पार्ट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। राइट नाउ इंडिया काम कर रहा होते हैं अपना एनडीसीज के ऊपर, और जो इंडिया के मुताबिक एनडीसीज है दैट आर नोन एज इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस। ये इंडिकेट करता है कि किस तरीके से उनके जो गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए एक पॉलिसी शिफ्ट आता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर उनकी जो जीडीपी के मुताबिक परसेंटेज थी एमिशंस की वो 2005 के अंदर लेट सपोज 20 आप कह लो 60% थी, तो वो उस चीज को बाय 2030 लेट सपोज कम से कम करेगी बाय 40%, लेकिन जो एक्चुअल फिगर है बाय 2030 वो अपने जीडीपी के मुताबिक अपने जो एमिशंस हैं उनको कम से कम करेगी बाय 33 to 35%। ये इंडिया का एक एम है कि बाय 2030 दे विल बी रिड्यूसिंग देयर जीएचजीज एमिशंस बेस्ड ऑन देयर जीडीपी। और इंडिया का जो आईएनडीसीज है मतलब कि इंटेंडेड नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस वो रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर या रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर 40% मार्केट शेयर रखते हैं एज कम्पेयर टू नॉन फॉसिल फ्यूल्स। लाइक मतलब ये है कि बाय 2030 40% जो आप कह रहे हैं एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो रिन्यूएबल से ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द फॉसिल फ्यूल्स। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज सेशन। किस तरीके से आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि इंडिया किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है और चाइना की क्या प्रोग्रेस चल रही है। पाकिस्तान की इतनी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं चल रही क्योंकि राइट नाउ पाकिस्तान इज शॉर्ट ऑन फंड्स। आप कह रहे हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पाकिस्तान के जो जीसीएफ से प्रोमोटेड है ग्रीन क्लाइमेट फंड से, लेकिन वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ज्यादा हैं। वो रिन्यूएबल के अंदर थोड़े से ज्यादा है कि सोलर एनर्जी का एक प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर ये थल वाली साइड के ऊपर। और उसके अलावा एक जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है डेट वाज इफ आई एम नॉट रॉन्ग पिंक मेट्रो बस का, डेट वो भी जीसीएफ से लिया है पाकिस्तान ने फंड। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो कि पाकिस्तान काम कर रहे हैं। क्लाइमेट के अंदर हमारे पास जो एक अपने रिसेंट मॉडिफिकेशन थी वो ये थी कि हमारे पास क्लाइमेट चेंज एक्ट आया है 2017 से, और कहा गया था जब आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप इन फेडरल ईपीए कि ये वाला जो एक्ट था ये बहुत जल्दी आ जाएगा, ये बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाने वाला था। लेकिन अब चले कोई बात नहीं, देर सही लेकिन इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड और क्लाइमेट चेंज का जो एक्ट है वो अब ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और हमारे पास क्लाइमेट चेंज की कमेटी भी बनी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लाइक उस चीज को प्रॉपर्ली ग्रीन लाइट दे दिया गया था कि यस वी विल बी क्रिएटिंग अ क्लाइमेट चेंज कमेटी। अभी मुझे नहीं पता कि उसके आप कह रहे
उसकी जो पोस्टिंग्स थी या कि कौन कौन से उनकी कैबिनेट का हिस्सा है। उसके बाद एक नई चीज आई थी कि पाकिस्तान के अंदर एक उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से हमारे पास क्लाइमेट चेंज एक्ट बना है, हमारे पास क्लाइमेट चेंज कमेटी बनी है, हम लोग एक क्लाइमेट चेंज फंड भी बनाएंगे पाकिस्तान के लिए, जो कि पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज की जो प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे होंगे उनको उनके अंदर हेल्प करेगा। लेकिन आई डू नॉट नो कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज फंड का वो प्रॉपरली तायुन करेंगे। आई डू नॉट नो कि किस तरीके से वो किन किन स्टेट से या किन किन अकेले ऑर्गेनाइजेशन से क्लाइमेट फंड लेंगे, फिर कितना ज्यादा फंड देंगे वो एक प्रोजेक्ट को। फिर ये भी नहीं पता कि हमें कि वो क्या जो क्लाइमेट चेंज फंड होगा वो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए होगा या वो साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट के लिए भी होगा। अच्छा, स्पेसिफिकली या वो प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्रोजेक्ट्स के लिए होगा, तो क्या कुछ परसेंटेज आपके लिए पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट्स के लिए भी होगी जो आपके लिए सिविल सोसाइटीज की प्रोजेक्ट्स होती हैं। सो दीज आर सम लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो कि पाकिस्तान के क्लाइमेट गवर्नेंस को राइट नाउ एक तरीके से तशवीश का शिकार बना देते हैं, और इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। और राइट नाउ मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज का गवर्नेंस है दैट इज बोगस। थोड़ा सा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। स्टार्ट अभी से कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। और yes, we do need a lot of young mind. We do need a lot of young people. हमें मैन पावर बहुत ज़्यादा चाहिए in terms of environmental sector as well. So this was all from my side. अगर आप लोगों को कोई सवाल हो, please feel free to raise your hand, ask a query, or just type in the chat box. I am right here, and I'll be answering your question. And I'm once again really sorry for my parrot for the continuous disruption. अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो प्लीज जस्ट लेट मी नो एंड देन वी विल बी कॉलिंग ऑफ टुडे सेशन। जो कल का सेशन होगा मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी ऑन द कॉप्स, द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, एंड इट विल बी अ रियली इंटरेस्टिंग सेशन आई एम थिंकिंग। और इसके ऊपर हमारे पास एक थोड़ा सा सरप्राइज होगा। आई बी फोकसिंग के मैं कोशिश ये करूँगा कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्लाइमेट चेंज की कॉप के रिगार्डिंग बात ना करें, बट हम लोग जो बायोडाइवर्सिटी कॉप हमारे पास रिसेंटली गुजरी थी हम लोग उसके ऊपर भी मजीद बात कर लें। और जो हमारे पास अभी आगे आने वाली कॉप है ऑन डेजर्टिफिकेशन, जो कि अभी रिसेंटली बिल्कुल 2 दिनों के बाद स्टार्ट हो जाएगी, हम लोग उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इफ यू हैव नो क्वेश्चन आई विल बी कॉलिंग ऑफ दिस मीटिंग in a formal way. Either just react or just type in the chat box. So thank you so much. Thank you. It was a very beneficial lecture. And as you already mentioned that you will provide us with the recordings. So I just request you that please provide us recordings as early as possible, because I think that many of us also face some kind of internet problem somewhere in traveling. So due to such issues, they will prove to be very beneficial. So I request again to you. Inshallah, I'll be trying my best. If not recordings, then I'll be trying my best to provide you the presentation slides as early as possible. However, right now we will be trying our best to give you as early as possible the presentation, the PPT slides. और रही बात रिकॉर्डिंग्स की, तो रिकॉर्डिंग्स हम लोग इंशाल्लाह प्रॉपरली कोशिश है कि जो लास्ट सेशन हमारा होगा उसके बिल्कुल विद इन अ डे और टू हम लोग हमारी रिकॉर्डिंग्स को आपके यहाँ तक पहुँचा देंगे सारी, बिकॉज थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह रिक्वायर्ड होती हैं। और आफ्टर द एडिटिंग वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द रिकॉर्डिंग्स, एंड यस वी विल बी प्रोवाइडिंग यू और PPTs एज अर्ली एज पॉसिबल। कल की जो PPT आपको वो आज या इन द अर्ली मॉर्निंग मिल जाएगी। यस मिस सामना, यू हैव रेज्ड योर क्वेश्चन, you have raised your hand. And if you have any relevant readings as well, please share in the group.
we can do that on our part, and it will increase our knowledge as well. Sure, Nisana. I'll be giving you some readings. मैं आपको इंशाल्लाह ट्राई पूरी करूंगा और I'll be giving you a book जो आज के लिए from where I prepared that is climate governance on climate governance और जो कल की थी कल के लिए मैं आपको प्रेजेंटेशन अपनी जो स्लाइड्स थी मैं प्रोवाइड कर दूंगा and yes I'll be giving you that लिंक आर्टिकल्स लिंक जिनमें से जहां से मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है वो भी किस तरीके से चल रही है एंड दैट आर्टिकल वाज पब्लिश्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन अप्रैल 2024 सो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोगों ने इस सेशन को ज्वाइन किया आई एम रियली होपिंग कि आप लोगों ने इफ नॉट दैट मच तो थोड़ा सा सीखा हो आई नो कि आज के सेशन में थोड़ा सा डिस्टॉर्शंस आई थी लेकिन यस अगर किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज फील फ्री टू हिट मी अप आइदर ऑन व्हाट्सएप और लिंक्डइन जीमेल सब कुछ आपके पास होगा नहीं तो आप कल के सेशन में पूछ सकते हैं और जो कल का सेशन होगा दैट विल बी ऑन द कॉप्स हमारे पास जो कल का सेशन है दैट विल बी रियली इंटरेस्टिंग लुकिंग फॉरवर्ड टू योर क्वेश्चंस इन टुमारो सेशन और कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चंस आप जरूर कीजिए क्योंकि दिस इज योर टाइम टू ask your questions and this is our time to answer your questions and have a fruitful discussion. So इसी चीज के साथ thank you so much for attending this session. Good night. ध्यान रखिए अपना, शब खैर, खुदा हाफिज.